सम दोज यू आर मिसिंग, और आपके घर में भी बच्चों को भी किसी को करना है, सो दे कैन वी विल शेयर द लिंक आल्सो लेटर ऑन। या सो हाँ। या so today meeting we have started in a little bit in emergency way 2 3 days before we decided, because lot of turmoil is happening in the market in global scenario also. Otherwise, we are planning to have in next week, but this time the situation is difficult, and we think that people having lot of questions in their mind, and lot of news flow is going on in the market. So I think that we should be keep it at a urgent basis. So that's why we keep on Friday evening. This is the reason. Next slide, please. So we are covering the following points: geopolitics and impacts on the Indian market, global market, current economic scenario, even some part of the technical analysis we are covering, because market is short term में market is behaving on a technical basis even in medium term, but in the very very long term market is obeying the fundamentals. So we are covering little bit technical analysis also. Plus, in this crisis or in this scenario, where is the opportunity to rebalance the portfolio or to invest the new funds or changing the schemes, changing the rebalancing or our portfolio. Then fifth is a new category introduced by the SEBI, SIF, Systematic Investment Funds. Specialized investment funds. Its name is strongly mentioned. So SIF is a new category added by the SEBI, which is in between of the mutual funds and PMS. So we will talk in little bit details about that. So first is the geopolitics and in impacts on our economy, stock market, global market. So war is happening. Actually, in starting, the war is happening between Iran and Israel. I have gone through a lot of history about why this skirmish is happening from year to years. And we know that the US is sitting behind far away, but he is having a lot of bar base or striking base in Middle East, some places in Saudi Arabia, Dubai. Before that, people were thinking that कि ये Israel और अमेरिका का प्रॉब्लम है, but later on is understanding that the US is having this armed force bases, navy bases in different countries, and Iran is attacking on these places. And people suddenly realize that this is not between the America and Iran or Israel. These people is also involved into that. लास्ट के 10 दिन के अंदर में जो अफरा तफरी हुई है, द पीपल दो मिसाइल इज impacted on Dubai, in Saudi Arabia, and even in Iraq. Yesterday, the Iraq में दो जो शिप थे ऑयल के, अमेरिका के ऑयल टैंक्स, उसको भी अटैक किया गया. तो स्टार्टिंग में अपना मार्केट इतना ज़्यादा करेक्टेड या डाउन साइड में बिहेव नहीं कर रहा था. जैसे जैसे वॉर आगे गया, इसकी लेंथ बढ़ती गई, उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये खाली उनके बीच का वॉर नहीं है, ये वॉर हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर सकता है. Like in the way lot of Indian is working in the Middle East country, and now these people are coming back to India. तो जो इंडिया में रेमिटेंस आता है, इंडिया से बहुत सारे खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट होते हैं, ईरान में भी होते हैं और इन मिडिल ईस्ट में भी होते हैं. तो वो एक सप्लाई सिस्टम में फर्क आ गया. प्लस लॉट ऑफ फ्लाइट हैज कैंसिल्ड. तो इसके अंदर में जो जो स्टॉक्स इफेक्ट होते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, तो अभी फ्लाइट बहुत सारी कैंसिल हो गई, तो इंडिगो का शेयर, तो इंडिगो के शेयर्स को पहले कोई फर्क नहीं आ रहा था. सिमिलरली वी कैन से होटल शेयर्स, सिमिलरली वी कैन से जो अपने यहाँ बासमती राइस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट को, उन लोगों का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा. सिमिलरली जो इंपोर्ट हम ऑयल करते हैं, इंपोर्ट ऑयल करते हैं, लेकिन रिफाइनरी में अगर ऑयल ही नहीं आएगा
तो रिफाइनरी का मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है वो अभी फर्क दिखने लगा है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि मतलब अली खमेनी की डेथ हो गई है, 2-3 दिन के अंदर ये शांत हो जाएगा एंड दे विल गो बैक and the things will be normalized. But it is not happen because he is a religious leader. And secondly, America is giving the lot of emphasis कि आप हमारी बात मानो, हमारी शर्तों पे आप काम करो. And these are the very radicals and religious outfit. They never bends on the American dictations. You may be aware about the Afghanistan. अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतने दिन ट्राई किया, इतने साल ट्राई किया, अल्टीमेटली लास्ट में उनको भाग के जाना पड़ा वहां पर, एंड दे लीव एवरीथिंग. द सेम सिचुएशंस कैन बी हियर लाइक दैट, and Iran is already preparing for that type of the war with Iran and Israel and America. And as the things are going lengthy, it's affecting the economy in an indirect way. So there are two types. One is infrastructure के अंदर में जो भी डिस्ट्रॉयमेंट हो रहा है वो इंडिया में नहीं हो रहा है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जैसे मिसाइल गिर रहा है, बॉम्ब गिर रहा है, सो अदर कंट्रीज में जान मान की हानि हो रही है, बट इंडिया में जान मान की हानि नहीं हो रही है. बट हमारे पास फंडामेंटल की वजह से जो इकोनॉमिक और कंपनी के अंदर में जो फर्क पड़ेगा उसकी कैलकुलेशंस लोग करने लगे. अगर आप देखते हो तो जैसे अभी लास्ट के 10 दिन में बैंक निफ्टी एकदम से गिरने लगा, लाइक 61,000 बैंक निफ्टी था, टुडे इट अबाउट 54,000. तो होता क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर में, कि अगर बैंक का एक्सपोजर है कोई भी फैक्ट्री के अंदर, कोई भी कंपनी के अंदर में मिडिल ईस्ट में जिसका एक्सपोर्ट होता है, उनका फिर वो बैड लोन हो जाएगा, बैड लोन होने से उनके एनपीए बढ़ जाएंगे. तो ये सब चीजों की वजह से इंडियन मार्केट में बैंकों को भी शेयर नीचे आ रहा है. अदरवाइज स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर्स है उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, बट कहीं भी कोई भी किसी टाइप से रिलेशंस मार्केट के अंदर में लगा सकता है. सिमिलरली होटल इंडस्ट्रीज में भी सेम था कि हमारे पास इंडियन में लोकल होटल्स हैं, हमारे यहाँ शादी हो रही है, इवेंट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. लेकिन परसों के बाद से जब ये न्यूज आई कि होटल्स को गैस नहीं मिल रहा है और दिस कमर्शियल गैस इज नॉट अवेलेबल, yesterday I was in the meeting, they have cancelled the hotel meeting and goes to in some auditorium. Why? Because they could not serve the food. अभी होटल की कैंसिलेशन हो रही है, आगे की भी गारंटी नहीं है, तो 2 दिन के पहले होटल के शेयर गिर गए. तो होता क्या है कि कास्केडिंग इफेक्ट होने से यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट विच इंडस्ट्री विल इम्पैक्ट मोर, विच इंडस्ट्रीज विल गेट बेनिफिट. सो आई गेट ए कॉल फ्रॉम 4-5 big clients, or we can say our clients, that should be buy more or should be switch off from arbitrage fund to the equity funds. What I am answer to them, until unless the cloud has not settled, until unless some visibility is not happen, you cannot be give a guarantee कि ये इसका बॉटम है. बिकॉज जब मार्केट में पैनिक सिचुएशंस आता है, देन साइकोलॉजी इज वर्किंग मोर देन द फंडामेंटल. तो अभी मार्केट पूरा साइकोलॉजी पे चल रहा है और न्यूज पे चल रहा है. हम लोग अभी कॉल कोई ले लेंगे और जैसे हम देख रहे हैं 2-3 दिन में मार्केट अचानक से और भी ज्यादा गिर गया. सो वी कैन नॉट से बॉटम फिशिंग अभी नहीं करना रहता है इस सिचुएशन में, बिकॉज मार्केट इज रनिंग ऑन द न्यूज बेसिस. नाउ अदर फैक्टर्स, निफ्टी जो भी हमारा टॉप था लाइक 26,300 के आसपास था, वहां से निफ्टी अभी करीब करीब 12% करेक्ट हुआ है. इंडियन रुपीज ऑल्सो स्टेबलाइज 90 के आसपास था, वो अभी 92.4 हुआ. तो डॉलर और रुपीज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, जबकि हर बार ऐसा होता है जब भी आउटफ्लो होता है डॉलर का इंडिया से. बट एफआई स्टार्टिंग से ही सेल कर रहा है, तो हमारा रुपी ऑलरेडी 84 से करीब करीब 92 ऑलरेडी आ गया. एंड सम टाइम द डिप्रिसिएशन इज बेनिफिशियल टू अवर इंडस्ट्रीज. तो टैरिफ जो भी लगाया था ट्रम्प ने, अगर डॉलर को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा टैरिफ उसके अंदर में 10% ऑलरेडी कवर हो गया. बट एट द सेम टाइम अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है और इंडिया इज इंपोर्टिंग कंट्री, तो हमारा इंपोर्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी गड़बड़ा जाता है. तो कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा होता है,
कुछ इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है। एंड दिस इज द वे वेयर द फंड मैनेजर कम टू इफेक्ट कि किस इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट स्टिल selling. Third point, FI is still selling from last 2 years. Average, they are selling 5,000 crores in a day. Indian DI is still buying from the market, whatever the FI is selling. More than that, the domestic institutions is buying. Now, I have asked these questions to one of my fund managers that if, when the FI is selling 5,000 crore and DI is buying around 6,000 crore, 7,000 crore, market should not go down. The answer was many things like FI is sorting the Indian market also. So if you see the put call ratio or other parameters, so FI is selling, sorting the Indian market. एंड सेकेंडली लॉट ऑफ HNI और जो प्राइवेट बुक्स होती है ब्रोकर्स वगैरह की, उसके अंदर में सेलिंग कंटिन्यूसली हो रही है। तो अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर में खाली, नेक्स्ट स्लाइड जाओ या नेक्स्ट पेज डाउन करो थोड़ा, की की हाँ की इनसाइट्स। तो जनरली ये देखा गया है कि जब जब मार्केट में इस टाइप की सिचुएशंस आती है, उसके बाद जब मार्केट सेटल होता है, जैसे यूक्रेन वॉर हुआ तभी मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद, नहीं उसके पीछे वाली स्लाइड है लेकिन वो बॉटम में है, इधर यू कैन डू इट द फुल स्क्रीन, यस फुल स्क्रीन करो उसको, तुम्हारा जो नीचे का है ना, हाँ अभी बराबर है। इसको हाँ नहीं ठीक है। तो हिस्टोरिकली जनरली हमने देखा इस सिचुएशंस में, जब जब मार्केट पैनिक सिचुएशंस में आता है, मार्केट को 1-2 वीक सेटल होने को लगते हैं, जब बाउंस बैक होता है तो करीब करीब 25 से 30% का रिटर्न बनता है। अभी वही क्वेश्चंस लोग पुरानी याददाश्त के हिसाब से बोलते हैं कि वेदर इट इज द राइट टाइम टू deploy more money or change the rebalancing of the fund. So I have answered that कि थोड़ा तो क्लियरिटी आनी चाहिए कि ये वॉर थोड़ा रुकने लायक है नहीं है, या कहीं पे कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं, बीच में मध्यस्थ कोई कंट्री कर रही है, तो ऐसा लग रहा है बीच बीच में कि युद्ध बंद हो जाएगा, लेकिन फिर से कुछ ना कुछ स्क्रीमिश होता है। एंड अगेन कोई बड़ी मिसाइल या कोई, जैसे कल के दिन की बात है, कल ट्रम्प साहब ने डिक्लेयर किया कि वॉर इज नियर टू एंड, बट एट द सेम टाइम टू जो भी उनके नेवी के शिप्स, सॉरी शिप्स थे, ऑयल के शिप्स थे, वो दोनों को उन्होंने डैमेज किया, उससे सप्लाई सिस्टम में प्रॉब्लम आया। एंड देन पीपल रियलाइज कि ये वॉर खत्म, इवन दो वन पर्सन इज सेइंग ऑन वन साइडेड, बट इट इज नॉट सो इजी, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज स्कूप यस्टरडे एंड टुडे आल्सो। So this is the reason, that's why I am saying we are not taking any call, not even for sell or not even for the buying. Like जो हम लोग मार्केट में बोलते हैं डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, तो फॉलिंग नाइफ के जैसा भी मार्केट गिर रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम होता है। ओनली जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टटोरिये है, उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। ये सेम चीज मैंने अभी 7 अप्रैल 2025 को भी न्यूज मीटिंग लिया था, उसमें भी वही बताया था कि वेरी हैंडफुल ऑफ पीपल आर सेलिंग एंड बाइंग। आम पब्लिक को आज, जैसे आज हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी यहाँ पर ऑडियंस हैं, उसके अंदर में ना आपने कुछ ज्यादा बेचा है, ना ज्यादा आपने कुछ खरीदी किया है, but why the market is going down? Because some 2-3% people are selling in the market and there is no buyer in such situations. So market में कोई support नहीं रहता है and the market is falling. And technical वाला उसमें आग में घी का काम करता है। टेक्निकल वाला बोलता है सपोर्ट टूट गया, इसके और नीचे जाएगा, तो जिनकी फ्यूचर ऑप्शंस में पोजीशंस होती है, these people get panic and they अनलोड देयर पोजीशन। बट इन्वेस्टर को, अगर जो इन्वेस्टेड है, जिसने अपना पैसा लगाया हुआ है, उसको कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। सो बी, मतलब यू एंड मी इज नॉट सेलिंग एंड वी आर नॉट बाइंग इवन, फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है? तो ये होता है इमोशनल सेंटिमेंटल फर्क, जो टेक्निकल से ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड। या या, सो दिस इज द
fundamentals about the market, the CPI inflation is around 3.2. तो हमारा इन्फ्लेशन पिछले 10 साल से काफी नीचे है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज था। और उसके बेस पे हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि इंडिया में जो फंडामेंटल इंडिकेटर है विच कैन इंक्रीज द मार्केट की, थोड़ी सी जो 2 साल से बढ़ा नहीं, 18 महीने से बढ़ा नहीं है, शायद बढ़ जाएगा। बट ये बीच में अचानक से यूएस एंड ईरान का जो भी वॉर हुआ है उसकी वजह से डिरेलमेंट ऑफ फंडामेंटल्स हुए हैं। अदरवाइज आवर इन्फ्लेशन इज इन कंट्रोल। थर्ड क्वार्टर का जीडीपी जो नंबर आया था अभी अभी लास्ट के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, तब भी हमारा जीडीपी ग्रोथ इज 7.8। एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ हमारा 7.5 है। तो हम लोग कहीं भी नेगेटिव नहीं है, वी आर पॉजिटिव ऑन द एवरी साइड। बट ड्यू टू दिस वॉर सिचुएशंस, लाइक मार्केट इज करेक्टिंग, कोर इन्फ्लेशन हमारा स्टेबल है। Then GST collections is still at the very high place, 8% year to year growth हो रही है। GST collections अगर अच्छा है इसका मतलब है the industry is working good, companies are having good turnover, टर्नओवर के बेस पे प्रॉफिट की वैल्यूएशन के बेस पे जीएसटी कलेक्शंस होता है। तो ये सभी इंडिकेटर्स हमारे प्लस हैं। क्यूमुलेटिव जीएसटी कलेक्शंस हमारा करीब 20 लाख करोड़ हो गया अभी तक का। कॉर्पोरेट अर्निंग में भी लास्ट के 2 क्वार्टर्स, सेकेंड क्वार्टर से लेके थर्ड क्वार्टर अभी हो गया, अभी फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, थोड़ा सा ग्रीन शूट दिख रहा था मतलब जो पहले की प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, बिकॉज ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट डाउन हुए थे, जीएसटी में रेशनलाइजेशन हुआ था, और कुछ पीएलआई स्कीम वगैरह थी। तो सेकेंड क्वार्टर के बाद और थर्ड क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट आया पॉजिटिव साइड में। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ 26 में थोड़ा सा मॉडरेट है, 10 से 12% का अर्निंग ऑफ द कंपनी, लेकिन 27 में अर्निंग ग्रोथ इज अराउंड 17 to 19%, 17 to 19% का एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। क्योंकि अभी इंडिया में कैपेक्स काफी हो रहा है। कैपेक्स में आपने अगर देखा भी रहेगा, गूगल ने इंडिया में हिंजवाड़ी में या इंडिया में हैदराबाद में गूगल ने पूरा बैक ऑफिस डाला हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी डाला हुआ है। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में। अभी मेरा एक रियल एस्टेट एडवाइजर से भी बात हो रहा था, सो ही सेइंग लॉट ऑफ happening is done in the Pune, in Hyderabad, in Bangalore, because all these IT companies or AI companies is setting up establishment in India, especially in Hyderabad, Pune and Bangalore. तो उसकी जो कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हुई है, दैट विल बी विजिबल इन 27। 26 जो हमने सेकंड लाइन यहाँ पर बताई, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ इज 12 to 14%, जो 27 में 17 से लेके 19% तक की आ सकती है, बिकॉज ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन द करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शोइंग ग्रोथ। तो आप अगर देखोगे इस साल में बैंकिंग इंडेक्स का अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। लास्ट के 3 दिन के अंदर में बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा है, अदरवाइज बैंक निफ्टी वाज एट द टॉप ऑफ द चार्ट। जबकि निफ्टी अपना 26,300 था, वो टॉप पे नहीं आया, लेकिन बैंक निफ्टी हमारा टॉप पे आ गया था, बिकॉज ड्यू टू द थर्ड लाइन कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में एनपीए कम हो गया है, सीआरआर कम हुआ है, और अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। तो आरबीआई ने भी बहुत सारा सपोर्ट किया है, दैट्स वाई आवर बैंकिंग सेक्टर इज आउट परफॉर्म द निफ्टी। बट लेटेस्ट में जो हमने पहले भी एक जिक्र किया है कि जो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ लोगों को ऐसा डर लगता है कि कुछ कंपनियों के एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, कुछ कंपनियों की प्रॉफिट कम हो जाएगी, शायद वो लोन को सर्विस नहीं कर पाएंगे, एंड दैट्स वाई बैंकिंग सेक्टर में सडनली 4 दिन के अंदर में काफी बड़ी करेक्शन आई है। करीब करीब 10% बैंक निफ्टी नीचे आया टॉप से, 61,000 का टुडे वाज अराउंड 55,000। सो 6,000 का करेक्शन बैंक निफ्टी में विद इन 1 वीक आया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है कि जो हम सोच रहे थे कि मार्केट में रिकवरी आएगी, बिकॉज लास्ट 18 मंथ इंडियन मार्केट हैज नॉट परफॉर्म वेल, इवन दो चाइना, कोरिया, जापान दे हैव डन वेरी वेल। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो लास्ट ईयर में कोरियन मार्केट हैज गिवन रिटर्न ऑफ अराउंड 120%। लास्ट के एक हफ्ते में कुछ 12% करेक्ट हुआ है।
चाइना में भी करीब करीब 40 से 50% के रिटर्न जनरेट हुए थे। दैट्स वाई पीपल और एफआई शिफ्टिंग मनी फ्रॉम इंडिया टू चाइना। बट लेटेस्ट में चाइना में भी करेक्शन आया, क्योंकि कोई भी एसेट्स क्लास अगर 60 से 70% का रिटर्न देता है तो उसमें टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 8 पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लास्ट मंथ में, उसकी वजह से भी कंजम्पशन बढ़ सकता है। ये सब फैक्टर्स हम लोग काउंट करके चल रहे थे, और हमारा निफ्टी करीब करीब दोबारा से 26,800 सॉरी 25,800 से लेके 26,200 के आसपास आ गया था। हमें ये लग रहा था कि हमारा शायद अब ये टॉप में ब्रेकआउट हो जाएगा, बट वो हर बार जब जब इंडिया में बाउंस बैक आया वो टिका नहीं, बिकॉज ड्यू टू द एफआई कंटिन्यूसली सेलिंग एंड न्यूज फ्लो। न्यूज फ्लो में कैसा है कि अमेरिका के साथ टैरिफ में डील हो रहा है नहीं हो रहा है, किस सेक्टर को फर्क पड़ेगा। अब जैसे जब भी इंडिया और यूएस का डील का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके अगले हफ्ते में उन्होंने पाकिस्तान से डील कर लिया, और पाकिस्तान में कम टैरिफ लगाया, इंडिया में फिर भी 25% लगाया। तो एवरी वीक द न्यूज इज चेंजिंग एंड मार्केट कैन नॉट बी सस्टेन एट द टॉप लेवल। जब जब मार्केट में एक साथ साथ मतलब 1,000 पॉइंट या 1,200 पॉइंट में निफ्टी में रैली आई है, तब तक वो ऊपर में सस्टेन नहीं कर पा रही है, वहां से नीचे आ जाता है। इवन अगर हम देखते हैं कि 4 दिन पहले भी 600 पॉइंट एक दिन में निफ्टी गिरा, बाद में दूसरे दिन 400 पॉइंट बढ़ा लगा के ट्रम्प साहब ने बोला कि वॉर इज गोइंग टू बी एंड, एंड निफ्टी हैज बाउंस बैक 400 पॉइंट। 400 पॉइंट बाउंस बैक होने के बाद फिर से 1,000 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसके अंदर में कोई भी स्टेबिलिटी अभी दिख नहीं रही है। दैट्स वाई लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि टाइम टू इन्वेस्ट फ्रेश मनी। आई से यस, बट वेट फॉर क्लैरिटी एटलीस्ट फॉर 1 वीक, और वन वन वीक तो हमें देखना चाहिए। अगर ज्यादा ये खींचेगा, सब लोग यही बोल रहे हैं, अगर और ज्यादा खींचता है तो इनडायरेक्ट फर्क इंडियन कंपनी पे ज्यादा पड़ रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में कोई मिसाइल नहीं गिरा है, इंडिया के अंदर में कोई स्क्रीमिश नहीं हुआ है, कोई मोर्चा वगैरह नहीं निकला है, बट स्टॉक मार्केट को तो अर्निंग से लेना देना है। अगर कंपनी की फंडामेंटल और अर्निंग अच्छी है तो कंपनी का शेयर ऊपर रहेगा। तो पीपल आर थिंकिंग दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ड्यू टू द ईरान एंड इजराइल वॉर, बट इनडायरेक्टली कंपनीज आर अफेक्टिंग एंड प्रॉफिट में भी अफेक्ट। मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग कि अगर ये इसी टाइप से चलेगा तो जो इंडिया में रेमिटेंस आता है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है, या जो कंपनियां वहां पर जो एयरलाइन है, ऑयल है, इसकी वजह से, गैस की वजह से तो डिस्टरबेंस होता है। मार्केट कभी भी अनसर्टेन सिचुएशंस को पसंद नहीं करता है। मार्केट इज ऑलवेज लाइक कि आप कम रिटर्न दे दो लेकिन स्टेबल रिटर्न दे दो। That's why market is behaving in a downside. Next slide. तो ये हमने एक निफ्टी का चार्ट बनाया है, 2 इयर्स का चार्ट है। 2 इयर्स के चार्ट में अगर अपन देखते हैं तो जिन्होंने भी 2 इयर्स के पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अभी भी निफ्टी रिटर्न इज अराउंड 5.24%। बैंक निफ्टी अभी भी करीब 14% का रिटर्न दिखा रहा है। और मिड कैप में, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड करते जाओ। या सो दिस इज अबाउट द निफ्टी मिड कैप। मिड कैप अगर आप देखोगे तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अभी भी मिड कैप इज इज अप बाई 19%। एंड स्मॉल कैप, नेक्स्ट पॉइंट, या सो स्मॉल कैप में भी आप देखोगे यहाँ बॉटम से अभी भी 11% का रिटर्न है। लेकिन ये रिटर्न किसके लिए? जिन्होंने वन टाइम इस पेन में वन टाइम पैसा डाला हुआ है। एसआईपी वालों को रिटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ऊपर के लेवल पे भी खरीदी हुई है, नीचे के लेवल पे भी खरीदी हुई है, फिर ऊपर के लेवल पे खरीदी हुई है। सो एसआईपी एंड एसटीपी वालों को एवरेज रिटर्न में 1-2% का रिटर्न या 1-2% का माइनस दिखता है। बट जिन्होंने वन टाइम डाला स्टिल दे आर इन द प्रॉफिट, बिकॉज उस टाइम में मिड कैप में करीब करीब एक 30 से 35% का रिटर्न आया था। वो अभी करेक्ट होके करीब करीब 15 से 18% के रिटर्न पर है। So this is about the different indices. Yesterday I was in meeting, तो
मिड कैप सॉरी स्मॉल कैप का पी अभी करीब करीब 19 तक आ गया है, विच इज वेरी अट्रैक्टिव लेवल। स्मॉल कैप का कभी भी इतना कम पी होता नहीं, जनरली स्मॉल कैप का पी यूफोरिया कंडीशन में 35 to 38 होता है, मिड कैप का पी करीब करीब 26 होता है, और 26 से लेके 32 तक होता है, और निफ्टी का करीब करीब 20 से लेके 26 तक होता है। सो दिस इज अबाउट द निफ्टी ईपीएस। निफ्टी ईपीएस इज ऑल्सो गुड, दैट विल बी कवर बाय अवर कलीग प्रसाद। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें एक ये था ना निफ्टी पी, जस्ट आई गिव द नंबर। सो निफ्टी पी भी अभी अपना करीब करीब 20 के आसपास आ गया, अगर आज का करेक्शन अपन मानते हैं। तो जब भी हम यूफोरिक कंडीशन में था तब निफ्टी का पी 26 से 27 था। एट दैट टाइम वी आर कंसिडरिंग दैट वी आर ओवर वैल्यूड, एंड दैट्स वाई मनी फ्लोइंग फ्रॉम इंडिया टू चाइना, जापान और कोरिया। बट नाउ लास्ट के 2-3 महीने में इंडिया में भी करेक्शन आके एक निफ्टी अभी एवरेज लेवल के आसपास आ गया है, एंड दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन निफ्टी। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि जब तक ये अनसर्टेन टाइम है तब तक हम कोई बड़ा कॉल नहीं ले रहे हैं। यस, वी विल कॉलिंग ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिस्कसिंग द पोर्टफोलियो, उसकी जो एग्रेसिवनेस कैसी है, रिस्क प्रोफाइल कैसी है, पैसे की जरूरत, उसके गोल क्या है, उसके बेस पे हम लोग पोर्टफोलियो में 100% मतलब 100% मीन्स रीबैलेंस या रिव्यू करेंगे। So that is, but depends on the person to person. So whenever you find any query, please feel free to call us to our team also. तो ये हम आगे भी कवर करेंगे ये वाला पॉइंट्स। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करंट सिनेरियो में थोड़ा सा थेमेटिक है, बट कोई भी फंड जिसमें इस टाइप की जो सेक्टोरल फंड्स हैं उसमें जिसका ज्यादा एक्सपोजर रहेगा उसमें हम लोग ज्यादा एलोकेशन दे सकते हैं। सो कमोडिटीज, अभी कमोडिटी भी आप देखेंगे लास्ट के 7 दिन के अंदर में जो मेटल इंडेक्स ऊपर जा रहा था, लाइक गोल्ड सिल्वर के पीछे पीछे मेटल इंडेक्स भी भागा था, लेकिन लास्ट लास्ट में अभी लास्ट के वीक में मेटल इंडेक्स भी करेक्ट क्यों होगा कि अगर फैक्ट्रियां बंद है, कंजम्पशन बंद है, तो मेटल में भी डिमांड कम हो जाती है। तो जब सिल्वर और गोल्ड का भाव बढ़ रहा था तभी कॉपर बोल रहे थे कि नेक्स्ट गोल्ड है, ठीक है, कॉपर भी बढ़ा, ऑयल भी बढ़ा और दूसरे अदर मेटल्स भी बढ़े। लेकिन लास्ट के वीक में क्या हो गया, स्टील भी नीचे आ गया, टाटा स्टील भी नीचे आ गया, हिंदुस्तान कॉपर भी नीचे आ गया। तो मार्केट की सिनेरियो बदलने में टाइम नहीं लगता है। वाई द कॉपर एंड स्टील इज कमिंग डाउन? क्योंकि अगर वर्कर नहीं है दुबई में या कहीं भी जो मिडिल ईस्ट में है, काम ठप है, काम बंद है, तो कंजम्पशन कैसे होगा? या शिप्स नहीं जा रहा है, सपोज जिंदल स्टील का शिप लगा हुआ है हार्मुज के साइड में, तो वो शिप नहीं जा रहा है तो कंजम्पशन तो कम हो जाएगा। तो मार्केट में नरेशन बदलने में टाइम नहीं लगता है, एंड दैट्स वाई वी आर फंड मैनेजर जो भी है वो चेंज करते रहता है पोर्टफोलियो, बट वेरी फ्रिक्वेंटली, एवरी 15 days, एवरी 10 days, ही कैन नॉट चेंज, इवन यू कैन नॉट चेंज और आई कैन नॉट चेंज। लेकिन मैंने जो बताया है कि जो डार्लिंग सेक्टर था वो आज एकदम से पिटाई हो गई उसकी, जैसे मेटल का हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को और टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, सब एकदम से नीचे आ गए। बिकॉज इंडस्ट्रीज अगर बंद है, काम नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, सो दीज अब इनसे इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज, इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज के भी शेयर नीचे आ जाते हैं। सो शॉर्ट टर्म में यू कैन नॉट टेक ए कॉल कि कौन सा शेयर अच्छा होगा कौन सा खराब होगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर जोमेटो का केस ले लो, अगर होटल में खाना ही नहीं बन रहा है तो जोमेटो का भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑर्डर कहाँ से आएंगे। स्विगी को भी फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे स्विगी जोमेटो को इससे क्या लेना देना वॉर से? तो वॉर से संबंध हर चीज का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आने लगता है, शॉर्ट टर्म में वो नहीं दिखता है। सो दीज आर द सेक्टर्स वी आर, जैसे अभी हम देख रहे हैं, हमारे कलीग प्रसाद सर ने भी बोला था कि वॉर चल रहा है तो डिफेंस के शेयर ऊपर जाएंगे, लेकिन डिफेंस के शेयर में अगर वो निफ्टी में डिफेंस का शेयर है और निफ्टी अगर नीचे आ रहा है तो डिफेंस के शेयर्स भी नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं लेटेस्ट में बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, मिधानी बोलो या आईएएफ बोलो, एक्चुअली जब जब वॉर हुआ है तब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक का शेयर ऊपर गया, लेकिन इस बार नीचे आ रहा है। क्योंकि अगर मार्केट में ओवरऑल मार्केट में सेलिंग है तो एक पर्टिकुलर शेयर्स को आप पकड़ के बैठ नहीं सकते हो। टुडे निफ्टी में 50 शेयर्स में से 48 शेयर्स इज डाउन, तो उसमें आप एक शेयर कैसे ढूंढोगे कि जो बढ़ने वाला है?
और आज जो 2 शेयर ऊपर थे वो कल के दिन नीचे भी आ जाते हैं. सो दीज थिंग्स आर वेरी न्यूज बेस्ड थिंग्स. डिविडेंड यील्ड फंड भी है, और हमने जो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड बताया है उसके बारे में हम थोड़ा सा Q&A के बाद डिस्कस करेंगे. चैट पे आएगा. ओके. मार्केट इज बिलो द पीक. पीक से जो हमने बताया 12% के आसपास का करेक्शन आया है. तो मैनी सेक्टर लुक अट्रैक्टिव, बट वी हैव टू बी सिट डाउन एंड चेक. अपना पोर्टफोलियो पर्सनली देखने के बाद भी हम लोग कुछ रीबैलेंसिंग वगैरह करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. तो ये हम इस पे जो हमने बताया अभी के कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में रहती है, और सेबी इज आल्सो डिजाइनिंग द न्यू प्रोडक्ट्स फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रोटेक्शंस ऑफ their interest. So SEBI has come out with a new specialized products called SIF, Specialized Investment Fund, which is ये दोनों के बीच का है, PMS और म्यूचुअल फंड का. PMS में क्या होता था, 50 लाख मिनिमम वन टाइम पैसा डालना पड़ता था. और म्यूचुअल फंड्स में अगर मैं 2-2 लाख के म्यूचुअल फंड लेता हूँ और किसी को 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो उसका करीब करीब पोर्टफोलियो में 7-8 फंड, 12 फंड, 15 फंड हो जाते थे. उसको मिटिगेट करने के लिए सेबी हैज कम आउट विद अनदर फंड कॉल्ड स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड, वेयर द मिनिमम टिकट साइज इज 10 लाख रुपीज, वेयर द फंड मैनेजर कैन एक्ट एज ए PMS अकाउंट, बट इसकी टैक्सेशन म्यूचुअल फंड की जैसी है, वर्किंग PMS के जैसी है. तो व्हाई दिस SIF? SIF इज द मिडिल ऑफ PMS. PMS में क्या होता है, जब फंड मैनेजर कुछ शेयर बेचता खरीदता है तब आपको आपके लेवल पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है. जबकि फंड मैनेजर अगर इसी फंड के अंदर में बेची खरीदी करेगा तो उसको टैक्सेशन म्यूचुअल फंड का आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कैटेगरी एंड गोइंग टू बी रिप्लेस द PMS स्ट्रक्चर. तो अगर हम किसी भी फंड में 50 लाख का SIF ले लेते हैं तो वो PMS ही हो गया, लेकिन टैक्सेशन म्यूचुअल फंड का आएगा और आपको स्ट्रेटेजी PMS के जैसी मिलेगी. सो ये जो आपने रेड डॉट देख रहे हैं, ये SIF का, ये जो मैं फंड को आपको जो फंड के बारे में बता रहा हूँ, विच इज ए लॉन्ग शॉर्ट फंड. लॉन्ग शॉर्ट फंड का एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपया है और मेरे को 10 स्टॉक लेने हैं, तो मैं 7 स्टॉक ऐसे लूंगा जो बढ़ने वाले हैं, और 3 स्टॉक में मैं शॉर्ट करूंगा जो मुझे मालूम है कि मार्केट में घट सकते हैं. तो ओवरऑल एवरेज रिटर्न जो है इसका 10 साल का बाकी निफ्टी से भी आउट परफॉर्म किया है. इवन हाइब्रिड फंड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें 65% इक्विटी होता है, 35% से 25% डेट होता है. बहुत सारे लोगों के पास अभी बैलेंस एडवांटेज फंड है. बैलेंस एडवांटेज फंड में टैक्सेशन इक्विटी का होता है, लेकिन इक्विटी का एक्सपोजर कवरी 45-55% है. डेट का पोर्शन अराउंड 25% रहता है, और बाकी का उसके अंदर में आर्बिट्राज फंड रहता है, मतलब हेज करते हैं वो लोग पोजीशन को. तो अगर हम रिस्क देखते हैं तो रिस्क के हिसाब से बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न 10% है, और रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन करीब करीब 8.5 है. वैसे ही अगर हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को देखते हैं तो उसकी रिस्क जो है वो 12% की है, और रिटर्न करीब करीब हमारा 12% आता है. अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन 16% है, और उसका रिटर्न करीब करीब 13%. बट इसके अंदर में रिस्क कम होने के बाद भी उसका रिटर्न 14% तक आ सकता है. तो दिस इज द 10-year बैक टेस्टेड रिटर्न. Why this things has come to you? Because due to the SIF. म्यूचुअल फंड में कोई भी स्ट्रेटेजी, थीमेटिक या क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आम आदमी का पैसा रहता है, जिसके पास 5,000 रुपया है और जिसके पास 5 करोड़ रुपया है. सो दीज टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजीज इज नॉट एप्लीकेबल इन द नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स. So those who are having the appetite of taking little bit higher risk, but not more than very much high risk like in PMS. PMS में फीस भी ज्यादा लगती है, 2.5% के आसपास का लोड होता है. SIF में जो हमने अभी बताया इसका कुछ एक्सपेंस रेशियो भी कुछ 1.45 to 1.55 है. तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है, टैक्सेशन भी कम है. तो ये कैटेगरीज में अभी बहुत कम चॉइस अवेलेबल है इंडिया में. But now lot of fund house is coming out with the SIF fund.
नेक्स्ट स्लाइड मेरा रहेगा। सो अगर हम देखते हैं तो SIF के अंदर में एवरेज रिटर्न अगर हम देखते हैं, निफ्टी का 13% है, बैलेंस एडवांटेज 10% से, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड 12% से, लेकिन जो इलस्ट्रेटिव है मतलब लॉन्ग शॉर्ट फंड उसका 14% है। इस फंड का एक ही डिसएडवांटेज है, जब मार्केट वन वे ऊपर जाता है तब ये फंड अंडर परफॉर्म करेगा, बट एट द सेम टाइम इसकी रिस्क भी कम रहती है, जो हमने अभी स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था। तो आप देखिए फोर्थ वाली लाइन, मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न में निफ्टी ने जब 31% रिटर्न दिया, बैलेंस एडवांटेज ने 19% रिटर्न दिया, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 26% रिटर्न दिया, तो इस फंड ने 20% रिटर्न दिया। वाई इट इज सो? बिकॉज 30% पोर्टफोलियो शॉर्ट है। तो 4 शेयर 7 शेयर में से 7 शेयर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो 3 शेयर जिसमें वो शॉर्ट है फंड मैनेजर, वो भी बढ़ रहा है। तो अगर मैं 7 शेयर 10% बढ़ते हैं, 3 शेयर 4% बढ़ते हैं, तो मुझे को नेट रिटर्न 6% ही आएगा, which is not applicable in pure equity fund or pure portfolio return fund. So only in this condition, sometimes people say कि in Nifty तो 30% बढ़ गया और मेरा फंड तो 20% ही बढ़ा। Yes, it is right, because this fund is having less risk. जैसे अभी मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरते में अगर आप देखते हो तो मिनिमम रिटर्न के तीसरी लाइन पे जाइए। तीसरी लाइन पे अगर हम जाते हैं तो निफ्टी -7% हुआ है, बैलेंस एडवांटेज -2% हुआ है, हाइब्रिड फंड -4% हुआ है, लेकिन इस फंड में 7.8 फंड का रिटर्न दिया है। वाई? बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट में जो ये शॉर्ट है फंड 30%, उसमें से भी कमाई हो रही। तो नॉर्मल आदमी कभी भी शॉर्ट नहीं कर सकता मार्केट को, और नॉर्मल आदमी को अगर शॉर्ट करना है मार्केट में तो वो फ्यूचर ऑप्शन में जाता है। फ्यूचर ऑप्शन में सेबी ने स्टडी किया कि 92% लोगों को नुकसान ही हुआ है। सो दैट्स वाई टू मिटिगेट दिस टाइप ऑफ द रिस्क, सेबी हैज कम आउट के फंड मैनेजर को ये काम करने दो, यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन दिस फ्यूचर में हेज करो। जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, आप अगर देखोगे यूट्यूब पे बहुत लोग बोलते हैं पुट खरीदी कर लो या कॉल राइट करो, मार्केट दूसरे दिन बाउंस बैक होता है 500-600 पॉइंट, उसको यहाँ भी चपत पड़ती है और वहां भी चपत पड़ती है। सो दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द कॉमन मैन, और जो भी आदमी फुल टाइम में काम नहीं करता है उसको ये सब काम करना एक्चुअली वाजिब भी नहीं है। और ये डेटा हिस्ट्री भी बताता है कि हमेशा कॉमन आदमी को फ्यूचर ऑप्शन में 92% लॉस हुआ है। 8% जो प्रॉफिट में है लोग, वो उसमें इंस्टीट्यूशन साइड में होता है, इंस्टीट्यूशंस को ही फायदा होता है, आम आदमी को कभी भी फायदा होता नहीं है। सो दिस इज द end of my presentation. Now I will hand over to Prasad sir. He will talk about little bit fundamentals and technical charts. Yeah, so Prasad, please join. और जो चार्ट है पी एंड EPS। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, पहले मैं निफ्टी कवर करता हूँ, फिर आई विल टॉक अबाउट डी-डॉलराइजेशन एंड टैरिफ्स। तो अभी निफ्टी का सिचुएशन क्या है? निफ्टी आज 23,150 के आसपास क्लोज हुआ है। अभी ये निफ्टी का ईपीएस आप देखोगे तो इट्स अराउंड 1140-50 के आसपास है। तो आप पी रेशो निफ्टी का अभी करंट पी रेशो 20 के आसपास है। तो अकॉर्डिंग टू दैट निफ्टी का करंट फंडामेंटल वैल्यूएशन शुड बी क्लोज टू 23,000. We are exactly near that level. So fundamentally also 23,000 का जो लेवल है निफ्टी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली ऑल्सो 23,000 इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। जो लास्ट ईयर 7 अप्रैल से हम लोगों ने राइज देखा 21,700 से 26,400 का, उसका इम्पोर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल 23,000 के आसपास आ रहा है। So 23,000 is very crucial level for Nifty fundamentally as well as technically. अभी इस चार्ट में EPS
जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे निफ्टी भी कैच करता है। कभी कभी निफ्टी पहले नीचे आता है, बाद में ईपीएस नीचे आता है, जैसे 2020 में हुआ। अभी भी निफ्टी नीचे जा रहा है, ईपीएस थोड़ा फ्लैट है। आप लास्ट एक महीने का देखोगे तो अभी ईपीएस नीचे आएगा कि नहीं, दैट a lot of it depends on the current war scenario। अभी जो ऑयल एंड गैस का डिस्ट्रप्शन है वो ज्यादा देर कंटिन्यू हुआ तो हो सकता है कि निफ्टी का ईपीएस थोड़ी देर शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आए। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स क्लोज हो रहे तो टूरिज्म सेक्टर इज गेटिंग अफेक्टेड, ट्रांसपोर्टेशन इज गेटिंग अफेक्टेड, इवन मैन्युफैक्चरिंग इज गेटिंग अफेक्टेड। तो उस वजह से निफ्टी का फर्क पड़ सकता है। तो ये टोटली डिपेंडेंट है कितना देर वॉर चलेगा। इन माय ओपिनियन वॉर ज्यादा देर चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रम्प पे भी बहुत प्रेशर है कि वॉर जल्दी खत्म करे। अभी ये वॉर में गल्फ कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और गल्फ कंट्रीज मेनली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, कतर होता, इराक, वो यूएस के फ्रेंड्स है। दे आर यूएस फ्रेंड कंट्रीज, और उनका यूएस में काफी सारा ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इस इन कंट्रीज को लॉसेस होगा तो वो कहाँ से रिकवर करेंगे? उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड है यूएस बॉन्ड्स, तो उनको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट सेल करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी बोला है ये वॉर ज्यादा देर चला तो हमें बॉन्ड सेल करना पड़ेगा। अगर वो बॉन्ड सेल करेंगे तो यूएस का बॉन्ड यील्ड्स राइज होगा। वो ऑलरेडी 4.25 पे बढ़ गया है। वो अभी ये कंट्रीज अगर बॉन्ड सेल करते हैं, और भी कुछ कंट्रीज बॉन्ड सेल करते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए ट्रम्प पे भी प्रेशर है कि वॉर जल्दी खत्म करे। और बाकी नुकसान ईरान का भी हुआ है। ईरान का मेन अभी सैंक्शन है, फिर भी ईरान के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो इतना देर वॉर सस्टेन कर सके? क्योंकि वो क्रूड ऑयल बेच रहा था मेनली। मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल वाज बीइंग बॉट बाय चाइना। अगर चाइना और चाइनीज जो ट्रेड होता है वो युआन में होता था। अभी ये भी जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, इसमें भी डी डॉलराइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल है। जो जो भी इशू हो रहा है वो डी डॉलराइजेशन का इम्पैक्ट है। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ, रशिया, लास्ट ईयर नहीं, 2022 में जब भी यूक्रेन वॉर चालू हुआ, तभी रशिया का जो इन्वेस्टमेंट था यूएस में वो बाइडेन ने फ्रीज कर दिया, अराउंड 300-400 बिलियन डॉलर। तो तब से क्या हुआ, रशिया जैसा पावरफुल मिलिटरी स्ट्रांग कंट्री का इन्वेस्टमेंट फ्रीज कर सकता है यूएस, तो किसी का भी कर सकता है, ऐसा मैसेज वर्ल्ड में चला गया। तो उसके बाद सडनली all the countries woke up and they tried to diversify their investment away from US bonds। तो उन्होंने गोल्ड लेना चालू किया, और यहाँ इन्वेस्टमेंट यूएस बॉन्ड्स में कम हो रहा था और यूएस यील्ड्स इसलिए बढ़ रहे थे। यूएस क्योंकि उसका डिमांड कम हो रहा था, और यहाँ गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा था। ऑल सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना आर बाइंग गोल्ड। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा था। तो ये इम्पोर्टेंट मैक्रो शिफ्ट हुआ है लास्ट 2-3 साल में, एंड दिस इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन ट्रेंड। और ट्रम्प को क्या करना है, ये डी डॉलराइजेशन ट्रेंड है इसको रोकना है, इसको रिवर्स करना है, ताकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगेन इन्वेस्ट बैक इन यूएस बॉन्ड्स। तो उसके लिए वो पेट्रो डॉलर का जो मोनोपोली है वो मेंटेन करना है। अभी ये वेनेजुएला का प्रेसिडेंट क्या करता था, चाइना को ऑयल बेचता था, वो ऑयल चाइनीज युआन में बेचता था। अभी इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है, वो भी इंडियन रुपी में ले रहा है। सो वी आर नॉट स्पेंडिंग आवर डॉलर्स बाइंग दैट। और जो भी ईरान बेचता था चाइना को, वो चाइनीज युआन में बेचता था। सो ये जो कंट्रीज है, अगर एक एक कंट्रीज, गल्फ की कंट्रीज, बाकी जो मेन कंट्रीज है सऊदी अरेबिया वगैरह, वो भी अगर कुछ कुछ डील्स इंडियन रुपी में करने लगे और नॉन डॉलर करेंसी में करने लगे, तो क्या होता है, पेट्रो डॉलर का इफेक्ट कम होता है। तो और ट्रम्प वांट्स टू मेंटेन मोनोपोली ऑफ पेट्रो डॉलर,
इसलिए वो जहां जहां ऐसा पेट्रोल या प्रोडक्ट ऑयल अदर देन डॉलर करेंसी में ट्रेड होता है, वहां वहां वो प्रेशर डालता है, जैसे वेनेजुएला में डाल दिया, अभी ईरान में डाल दिया. He wants to control all the oil trade so that if he controls the oil, then he can sell the oil in US dollars. तो US डॉलर का मोनोपोली और पावर मेंटेन रहेगा. तो ये एक इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिनारियो अभी प्ले आउट हो रहा है. डी डॉलराइजेशन के बाद मैं आता हूँ टैरिफ पे. अभी लास्ट ईयर से टैरिफ का चालू है इशू. जो ट्रम्प ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स में टैरिफ लगाया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया, क्योंकि उन्होंने यूएस असेंबली, यूएस पार्लियामेंट, कांग्रेस से अप्रूवल नहीं लिया. तो ट्रम्प ने क्या किया, एक अलग ट्रेड एक्ट में एक अलग सेक्शन है 122, उसके तहत नया टैरिफ लगाया 15% का. अभी ये जो टैरिफ है वो सिर्फ 150 डेज के लिए वैलिड है. उसके बाद उसको कांग्रेस का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं ले सकता तो ये भी 150 डेज के बाद खत्म हो जाएगा. तो अभी वो क्या कर रहे हैं, एक नया सेक्शन ढूंढा है, सेक्शन 301. 301 या 301 ना, हाँ. 301. वो भी ट्रेड एक्ट 1974 के अंडर आता है. तो उसमें ट्रम्प क्या करने वाला है, जो भी कंट्री अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज में इन्वॉल्व है, ट्रेड प्रैक्टिसेस, उन पे टैरिफ लगाएगा. और इसका इन्वेस्टिगेशन उसको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो टैरिफ लगा सकते हैं. ये विदाउट कांग्रेस के अप्रूवल कर सकता है ट्रम्प. तो ये ट्रेड वॉर का और एक नया चैप्टर खुल रहा है, और ये 5 महीने बाद एप्लीकेबल हो सकता है, अगस्त में. तो इसमें ये ऑलरेडी ट्रम्प जब भी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बना था 2016 टू 20 में, तभी उसने चाइना के अगेंस्ट ये सेक्शन यूज किया है ऑलरेडी. दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड सेक्शन बाय हिम. अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में बोले. हाँ, अभी जो वॉर चालू है, इसमें आप देखोगे कि एल&टी का काफी शेयर गिरा है, क्योंकि एल&टी का इन्वेस्टमेंट काफी है, गल्फ कंट्रीज को एक्सपोजर काफी है. तो अभी क्या हो रहा है कि दुबई जैसा फाइनेंशियली एंड सिक्योर्ड और इवन सो कॉल्ड सेफ हेवन कंट्री अंडर अटैक है. दुबई एयरपोर्ट बंद है. वो उधर का ग्लोबल हब है एयरपोर्ट. तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे कोविड के बाद चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हुआ था, जो इन्वेस्टर थे उन्होंने चाइना के साथ साथ इंडिया को प्रेफरेंस दिया था बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए, वैसे इस वॉर की वजह से वेस्ट एशिया का कुछ बिजनेस इंडिया शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल बीइंग कंसिडर्ड एज अ सिक्योर कंट्री फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो एक एडवांटेज हो सकता है. दुबई भी जैसे फाइनेंशियल हब करके प्रोग्रेस कर रहा था, दुबई वॉज कम्पीटिंग अगेंस्ट न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर. तो जैसे अपना गिफ्ट सिटी आ रहा है गुजरात में, तो उसको भी कुछ बिजनेस दुबई से शिफ्ट होके गिफ्ट सिटी का बिजनेस बढ़ सकता है. तो एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए. और जब भी ये वॉर रुकेगा तो जो भी डैमेज हुआ है वो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा गल्फ कंट्रीज को. तो उसका कॉन्ट्रैक्ट, काफी कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कंपनीज को मिल सकता है. ठीक है. अभी एक लास्ट पॉइंट निफ्टी का पी रेशो का स्लाइड. हाँ, अभी आप देखोगे ये निफ्टी का पी रेशो है. ग्रीन लाइन जो है वो पी रेशो है, रेड लाइन है वो निफ्टी है. अभी ये लास्ट टाइम अप्रैल में जब भी टैरिफ का इशू पे निफ्टी ने बॉटम बनाया था 21,700, तभी 20 के आसपास था. अभी भी आज के क्लोज पे भी वो निफ्टी पी रेशो 20 के आसपास है.
और अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो RSI इज ऑल्सो एट ओवरसोल्ड लेवल एंड FIs का शॉर्ट पोजीशन देखोगे तो दे आर ऑल्सो एट ऑल टाइम हाई शॉर्ट लेवल। तो जब भी ऐसा सिनारियो हुआ है, मार्केट ने एक बड़ा बाउंस दिया है, टेम्पररी या परमानेंट वो अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि लॉट डिपेंड्स ऑन वॉर क्रिएटेड डिसरप्शन, वो कितना चलता है, क्या डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ से नॉर्मली बाउंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है अभी। You can हाँ open the floor for the questions answer. हाँ आप साइड में बैठ जाओ। ठीक है। Take chair. This is all I wanted to talk about. Now, if there are any question and answers, and you all can ask. So the floor is open for questions answer session. One by one we can those who raise the hand or so we are unmuting all and those who want to speak they can unmute themselves and they can ask the questions. But before that we get some 2-3 questions from the chat bot. तो चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं. जस्ट वन इज फ्रॉम द मिलिंद माली. इट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इक्विटी और एनसीडी. सो this is the personalized questions, but we will decide on the basis of assets allocation. Milind sir, Milind Mali sir, are you there? Mali sir. So he is Yes, asking. yes, Yeah, so he's yes. asking about के अभी राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी और एनसीडी. अगर बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस बोलेंगे तो इट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी एक्चुअली. लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हो जाए. प्रसाद सर ने भी जो बताया कि हम 2 साल के फिर से बॉटम पे आ गए हैं. पी भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए. एवरीथिंग इज इन फेवर ऑफ इक्विटी एक्चुअली. तो हम दो चीजें देखते हैं. इक्विटी में अपना पहले से एक्सपोजर कितना है, सेकेंडली अपने रिस्क एपेटाइट कितना है. तो ये पर्सन टू पर्सन से रहेगा. बट यस, अगर आपको कुछ फिक्स इनकम चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए, तो एनसीडी बेटर वे टू इन्वेस्ट. बट अगर आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, रिस्क ले सकते हो, तो इक्विटी अच्छा होता है. सो एनसीडी जनरली इज ए पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो वेयर यू वांट सम कांस्टेंट कैश फ्लो एंड फिक्स इनकम. तो Okay, उसका thank एफडी की जगह उसका ऑप्शन अच्छा है. बट अगर आप रिस्क एपेटाइट अच्छी है तो इक्विटी का ही ऑप्शन अभी हम देखेंगे. जो हमने बताया यूक्रेन वॉर बोलो, 7 अप्रैल को भी हमने एक मीटिंग की थी. उसके बाद से 20% निफ्टी ऊपर गया. मतलब तभी 23,500 आया था ना, कुछ 22,800 इंट्राडे. you. 21,700 के बाद फिर से हम 25,800 तक चले गए थे. 26,300 तक गए थे. तो 26,300 तक गए तो आप देखोगे तो करीब करीब 3,500 का निफ्टी में एक बाउंस बैक आया था, विच इज अराउंड 15% टू 20%. तो उसी टाइप का फिर से आ सकता है. सिर्फ फर्क ये है कि हमने जो दोनों ने डिस्कस किया है अभी, हाँ, Okay. तो लेवल नहीं दे सकते, वो सर ने बताया. सो बट वही बात है कि इतनी सारी कंट्री इन्वॉल्व हैं, किसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब तक ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होता है और फिर कौन सी कंट्री क्या स्टेप्स ले रही है, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी. तो स्टिल वी आर वेटिंग फॉर दैट. एक मेरे पास लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर शायद वो क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, तो मार्केट अभी बहुत शॉर्ट टर्म में कैसे बिहेव करता है, आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. बट लेट मी complete some questions answer. Okay. Second questions था मोहित सावंत का. मोहित सर, are you there? मोहित सावंत. Yeah, Yeah, so he's yeah, I'm asking. there. I'm there. Thanks. Yeah, so you are asking about the IT stocks. तो IT stocks में जितना भी हमने देखा है, IT में करेक्शंस करीब 25 से 30% का हो गया है. एंड यस्टरडे ऑल्सो वी हैव गॉन टू द मीटिंग. तो मार्केट में अभी जो थोड़ा सा डर था, वो ओवर रिएक्ट हुआ है मार्केट में. तो दीज कंपनीज आर बिकमिंग एज ए वैल्यू स्टॉक्स. अगर आप इन्फोसिस, टीसीएस का डिविडेंड डील देखोगे तो वो भी करीब 4-5% के आसपास आ गया है. दीज आर द ब्लू चिप कंपनी. मार्केट में एक ट्रेंड होता है, एक नरेटिव होता है कि इन लोगों ने कभी कुछ खर्चा नहीं किया एआई के ऊपर या कुछ इनोवेशन नहीं करते. अगर आप देखते हो, जब चैट जीपीटी आया था, उसके बाद अलीबाबा ने अनाउंस किया कि उसका जो
AI ऑप्शंस है वो उन्होंने ओपन किया है। तो ये कंपनियां अभी इंडिया में भी इतने हम लोग बेवकूफ भी नहीं है। दिस कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन AI ऑल्सो, बट दे आर नॉट डिक्लेयरिंग कि हम कल ओपन करेंगे, 2 दिन बाद ओपन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एंड दीज आर द कैश रिच कंपनी। तो अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे तो IT स्टॉक्स इज गोइंग टू द अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। बट क्या है कि सेंटीमेंट जब शॉर्ट टर्म में रहता है ना, तो सेंटीमेंट की वजह से वो अंडर वैल्यू और भी अंडर वैल्यू हो जाता है। सिमिलरली यूफोरिक कंडीशन में ओवर वैल्यू और भी ओवर वैल्यू होता है। सो ऑल दीज स्टॉक्स, और मैं बोलूंगा अगर आप IT इंडेक्स फंड ले लेते हो या IT फंड ले लेते हो, तो डेफिनेटली बाउंस बैक में तो अच्छा रिटर्न बन सकता है। बट वो इसके लिए भी सेम केस है कि थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। बट अगेन डिपेंड्स ऑन कि आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो में क्या है। अगर पोर्टफोलियो में पहले से है तो वो पोर्टफोलियो रिव्यू करने के बाद ही हम बता सकते हैं। जे प्योर फंड बोलेंगे तो इसमें करेक्शन बहुत बड़ी आ चुकी है। हर चीज ओवरसोल्ड होती है, हर चीज ओवरबॉट होती है। तो IT सेक्टर एंड IT स्टॉक इज ओवरसोल्ड। अगर आप देखते हो 2 दिन में मार्केट में जो घट आ रही है निफ्टी में, उसमें IT स्टॉक घटना थोड़े से कम हो गए। जैसे आज भी TCS इतना नहीं घटा, दो कल दिन भी नहीं घटा था। क्योंकि आप किसी भी स्टॉक को कितना पीटेंगे, कितना मारेंगे। तो ये एक चीज होती है कि लोग शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद उनको शॉर्ट पोजीशंस को रिकवर भी करना पड़ता है। तो अभी कैसा है कि जेन्युइन 20% माल बिका है और शॉर्ट में करीब 30% माल बिका है। तो शॉर्ट कवरिंग आती ही है कोई भी सेक्टर में, लेकिन वो तेजी टिकेगी कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा। until unless these companies are not showing the कि they are investing in research, they are investing in some innovation। तो लोग यही सुनना चाहते हैं इनसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, इतना पैसा रखा हुआ है, सो यू आर बाइंग बैक योर ओन शेयर बट यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन रिसर्च। तो ये सिग्नल अगर आ जाता है कोई कंपनी का, जैसे डीप सीक था अलीबाबा का। जब अलीबाबा को अचानक डीप सीक 2 दिन में नहीं बन गया, दे आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years एंड दे अनाउंस। सिमिलरली टेस्ला ने कर दिया, क्रोक करके जो उसका AI है। वैसे ही गूगल का जेमिनी है। तो ये सभी ऑलरेडी है मार्केट में। बट चैट जीपीटी द फर्स्ट मूवर, इसलिए सब लोगों को चैट जीपीटी मालूम है। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी एक 4-5 महीने में आपको दिखेंगे कि इन लोगों ने TCS इन्फोसिस, तो इनके पास पैसा है, टैलेंट है, सब कुछ है, और ये काम नहीं करेंगे ऐसा नहीं होता है। सो अगर ये जैसी न्यूज आने चालू होती है, दिस सेक्टर कैन बी बाउंस बैक। यस, राइट नाउ दिस सेक्टर इज heavily oversold। I think I have answered your questions। Yeah, thank you. Thanks a lot. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूजा कुमार मैडम ने पूछा है। तो मैडम, रीट का आपने बोला है, रीट भी जैसे हमने बताया है कि ये कास्केडिंग इफेक्ट होता है। जब मार्केट बहुत ऊपर था तो अगर मुझे रिस्क नहीं लेनी है और मुझे एक डिविडेंड डील, या जो हमने बताया था कि अभी IT स्टॉक में डिविडेंड डील अच्छा आ रहा है, तो रीट में क्या होता है कि कांस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम आता है। इसकी वजह से उसके अंदर में रैली आई थी। प्लस सेबी ने कुछ रूल निकाले थे कि रीट को एज ए स्टॉक करके कंसिडर करेंगे। तो जो फंड मैनेजर पहले जब रीट लेते तो उसको डेट फंड कैटेगरी में डाला जाता था। 2 महीने पहले जो नया रेगुलेशन आया उसके अंदर में रीट को एज ए स्टॉक करके कंसिडर किया। जैसे ही उसको स्टॉक करके कंसिडर किया तो बहुत सारे लोगों ने उसको बाई किया था। सो दिस इज हैपन इन 3 मंथ। अब वो हर चीज में जैसे मीन रिवर्जन होता है कि वो 380 का रीट एम्बेसी 460 गया, 470 गया, अभी एवरेज पे आ गए। तो इस चीजों में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है। अगर आप खरीदी करते हो तो 20-40 रुपए बढ़ेंगे। यू कैन नॉट हैव ए रिटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म में आप 15-20% रिटर्न नहीं निकाल सकते हो। बट यस, दिस इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फिक्स इनकम लाइक FDs, लाइक NCD। क्योंकि इसके अंदर में डिविडेंड एंड कैपिटल जो रिटर्न आता है वो टैक्स फ्री आता है। अदर इनकम्स में NCD में FDs में वो टैक्सेबल होता है। तो इसका करीब डिविडेंड करीब करीब 7 to 7.5% के आसपास आता है। प्लस अगर आप नीचे के लेवल में खरीदी करते हो, कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन के भी चांस बनते हैं। जैसे बीच में कुछ 410 का भाव था, 380 का भाव था, बीच में 470 गया। तो हम उस टाइम में उसको थोड़ा सा, जब भी आपको एक 5-7% का प्रॉफिट आता है, यू शुड बुक प्रॉफिट ऑल्सो। ये दिस इज नॉट ए शेयर के ये वन साइड में बढ़ते रहेगा, नहीं। ये कैटेगरी अलग है, खाली उसको स्टॉक मार्केट के अंदर में बाई सेल होता है एज ए स्टॉक। बट इट इज द रियल एस्टेट
real estate they give on the rent, they earn the rent, 90% money they are distributing as a dividend. तो आपके जो भी बड़े अभी रीट क्यों नीचे आ रहा है, इन्होंने इनके होटल्स भी होते हैं, इनके वर्क स्पेस होते हैं, जैसे विप्रो हिंजेवाड़ी में आप जाओगे, इन्फोसिस, आप ब्रुकफील्ड में जाओ, गुड़गांव में जाओ, आप मुंबई में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, जितनी भी आपको बड़ी बड़ी कंपनी दिखती हैं, जो भी चमकदार कंपनी दिखती है, सब ये रीट ने बनाई हुई रहती है। ये लोग आउटराइट पे इनको रेंट देते हैं, रेंट 5-10 साल का रेंटल यील्ड होता है, उसमें जो भी इनकम होती है आफ्टर एक्सपेंसेस 90% कंपलसरी दे हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट। ये रीट के फंडामेंटल में सेबी के गाइडलाइन में लिखा हुआ है। सो इवन दो मैंने 10 रुपए कमाए हैं, मुझे लगता है कुछ और अपॉर्चुनिटी 10 रुपए अलग इन्वेस्टमेंट करने की मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे 9 रुपए एज ए डिविडेंड करके ही देना है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी ग्रो लाइक स्टॉक इज ग्रोइंग। एट द सेम टाइम आपको हर बार कुछ कैंस्टेंट फ्लो पैसा मिल जाता है, तो आपका जो रेगुलर कैश फ्लो है वो मेंटेन रहता है। सो ऐसी सिचुएशन जब से अभी मार्केट नीचे आया है और किसी को पैसे की जरूरत है, then he can utilize this RET fund. Even you can sell your RET fund and buy the equity stocks or equity fund if you are more aggressive. तो इसको अपन एक बफर के जैसा यूज करते हैं रीट को, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस। तो अभी जो Ram Kumar. so REIT Just- basically now that it is falling slightly because of the market going down, so this is a good time to buy, right? यस यू कैन बाई इट। कैसे है कि कैसा है जो हमने बताया कि अब जैसे ये लोग रेंट पे देते हैं, ठीक है, होटल भी रेंट पे दिए हैं और इनके हॉस्पिटल भी होते हैं और वर्क स्पेस भी होते हैं। अब होटल की अगर शेयर गिर रही है क्योंकि ऑक्यूपेंसी कम हो गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि शेयर बाजार 20 रुपए का 16 हो गया, ठीक है, तो मुझे अभी स्टॉक में जाना है, तो मेरे पास तो पैसा लिमिटेड है, तो मैं कहाँ से सेल करूंगा, तो मैं रीट सेल करूंगा, क्योंकि रीट में मुझे कोई नुकसान ही नहीं है। सिमिलरली जो डेट फंड्स होते हैं, जो डेट फंड्स हैं, डेट फंड को सेल करके लोग इक्विटी फंड में जाते हैं, तो इसमें कोई फंडामेंटल खराबी कुछ ज्यादा नहीं आई है, मतलब 1-2% भी नहीं आई है, करेक्ट। लेकिन नीचे क्यों आ रहा है, नीचे इसलिए आ रहा है कि somebody इज टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। उसने इसीलिए तो 20% या 15% रीट को फंड में रखा था कि जब भी मार्केट नीचे आएगा तब वो रीट को बेच के ही विल बाय द एट द लोअर लेवल इन इक्विटी फंड। तो जैसे प्रसाद सर ने बताया कि अपना पी अभी एक अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया 20-21, तो वहां पर बाइंग शुरू हो जाती है। अब बाइंग करने के लिए पैसा कोई ऐसा कैश में बैंक में नहीं रखता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर, दे डोंट कीप मनी इन लिक्विड फंड और दे डोंट कीप मनी इन बैंक, दे कीप इन सम एनसीडी, जो मिलिंद माली सर ने बोला, और बॉन्ड रहते हैं, रीट्स रहते हैं। तो इसकी वजह से वो बिकता है, और बिकने से कोई भी चीज बिकेगी, थोड़ा बहुत उसका प्राइस में इफेक्ट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो कैसा है कि इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा, अपने एलोकेशन कहाँ पर कैसा है, बट यस यू कैन इन्वेस्ट इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन ए फिक्स इनकम। तो आपको दोनों फायदे होंगे, आपको डिविडेंड भी आएगा और शायद थोड़ा सा कैपिटल गेन भी आ जाएगा। तो जैसे अभी आपने बोला ना कि इक्विटी में वी शुड होल्ड, थोड़ा सा मार्केट्स थोड़ा सा वो संभल जाए, so does हाँ, this hold applicable for REIT also कि REIT में we can put? रीट में तो आप डाल सकते हो, रीट में इतना फर्क नहीं पड़ता है। रीट में अगर आप एफडी करने जाते हो तो रीट में डालो, फ्रैंकली बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल सकता हूँ। अगर आप किसी चीज में एफडी कर रहे हो तो आप रीट में पैसा डाल सकते हो। Thank you. एंड वो भी फिर पर्सनली डिस्कशन तो करना पड़ेगा कि पहले से कितना है आपके पास, फिक्स इनकम कितना है, रिस्क कैसी है, दैट अगेन 1 to 1 तो डिस्कशन करना ही पड़ता है। Ram Yeah, Kumar, I had a yeah. related question. या सत्यजीत, हाँ बोलिए। Ram Kumar, you beautifully explained about the IT stocks, specifically the companies like TCS, Infosys, and all. Yeah, Because I have a technology fund which I am monitoring yes, we have discussed also. closely. So, yeah. So I want to ask, it is called as a technology fund. So you explained about the IT stocks, but it has some Platform. e-commerce type, Yes. new age, technical stocks also, like Paytm, Zoho. So I PV want to Fintech. know, like last
so many months, this fund is under a constant threat because of tariffs has come and all. So I want to know, like, we are just following the fund and looking at the fact sheet, but as a experienced person, what does the fund manager has done in this last 1 year? Has he shifted some funds from one to another, or what has he done? Yeah, so Monitor that. What would you your say on that? questions is very rightly asked. And yesterday, even Janki Raman is handling this fund. फ्रैंकलिन के जो टॉप सीईओ थे इक्विटी फंड हाँ साइड में, तो इन्होंने हाँ एक्चुअली एक काम तो बहुत अच्छा किया था जब मार्केट में अप था बहुत ज्यादा। आपने भी देखा रहेगा इसके रिटर्न को 60% to 70% आए थे। तभी ये प्योरली फिनटेक स्टॉक्स में थे, लाइक पीवी फिनटेक बोलो, जोमेटो, स्विगी, और उस टाइप के मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में थे। रिटर्न भी बहुत फैंटास्टिक थे हाँ सबके। ठीक है। हाँ बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ये एक्सपेंसिव हो गए हैं, सो दे गो टू द सेफर साइड ऑफ द स्टॉक्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा। उसमें करीब हाँ करीब 25 से लेके 30% तक का स्टॉक्स लार्ज कैप में मूव किया था। ठीक है। हाँ और ये लग रहा हाँ था कि टीसीएस, इन्फोसिस 2 साल से चला नहीं, अब चलेगा। ये सडनली क्या हाँ हुआ है, एआई का जो वेव आया है, एआई की हाँ वजह से कि ये इन कंपनी के जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, तो ये जो 1.5 महीने में जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन आया है, जहां पर ये शिफ्ट हुए थे, हाँ लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, हाँ टेक महिंद्रा, बड़ी कंपनी और प्योर आईटी कंपनी, व्हाट आई एम सेइंग, आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की उसमें कि ये हाँ फिनटेक कंपनी में ज्यादा था। रिटर्न भी इसलिए बना, लेकिन फंड मैनेजर को हाँ ये भी मालूम था कि ये हाई वैल्यू हुआ है, उन्होंने शिफ्ट भी किया। लेकिन हाँ क्या हुआ, वो मतलब यहाँ पर खाई यहाँ पर समुंदर, ऐसा हो गया उनका। मैंने क्लियर, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जहां पर हाँ हम गए थे वो भी नीचे आ गया, एंड दैट इज ड्यू टू द ओनली आईटी, एआई की वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है मार्केट में कि एआई की हाँ वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब जाएंगे, लेकिन ऐसा इतना आसानी से होता नहीं है। उन्होंने बोला वी आर हाँ कीपिंग वॉच ऑन दैट, बट दे आर नॉट हाँ सेलिंग एनी बिग आईटी कंपनी। हमारा जो खुद का भी कॉमन सेंस बोलते हैं इन लोगों के पास पैसा बहुत है, खाली अब क्या होता है, एक नैरेटिव बन जाता है कि ये लोग कुछ खर्चा नहीं करते, इन्होंने कभी रिसर्च नहीं किया, इन्होंने कभी कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किए, ये सिर्फ सर्विस इंडस्ट्रीज का काम करते हैं। ऐसा होता नहीं है। हम्म जब भी जब भी कोई थ्रेट्स आती है कोई भी कंपनी, दे आर द विजनरी कंपनी, यू सी। हम्म तो हम्म अब हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और वी हम्म कैन से 50% हम लोग थोड़ा सा स्विच भी कर सकते हैं। बट हाँ yesterday only we have talked to the fund manager, even we are thinking to have a fund manager का, हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं जिनके पास ये फंड है, हम एक पर्सनल कॉन कॉल भी करवाएंगे। ओके ओके तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी चैट जीपी चल रहा था 4 महीने पहले, इसका डीप सीक आया अलीबाबा का, हाँ जैसे ही उसने डीप सीक का डिक्लेरेशन किया तभी चैट जीपी का शेयर का भाव 20% से करेक्ट हुआ था। इवन एनवीडिया हम्म भी करेक्ट हुआ था। तो हम्म उसके बाद में टेस्ला का भी आया, क्रोक करके जो है, आप अगर एक्स पे देखोगे तो जो एआई एप्लीकेशन है इसका क्रोक, तो हर एक आदमी ने अपने अपने एआई फंड निकाल लिए। अब एआई में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हम्म है उस कंपनी को थ्रेट्स हो रही है कि वो कंपनी प्रॉफिट कर पाएंगी कि नहीं। हम्म तो ये शायद 2 साल बाद ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो एआई में गए थे उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, जैसे आज जोमेटो और स्विगी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, खाली हम्म वॉल्यूम बढ़ रहा है। हम्म तो ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 साल बाद मालूम पड़ा कि एआई में गए थे जो लोग, उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ये हम्म थोड़ा सा लोग डर भी रहे हैं। और आपने अगर कुछ न्यूज फ्लो भी देखोगे तो एनवीडिया या ओरेकल, इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है कि दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग हैविली इन एआई, बट एआई इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। हम्म बट बट वो तो मतलब मार्केट का एक पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाएगा एआई, उसमें प्रॉफिट हो नहीं हो। जैसे आज हम वोडाफोन का मोबाइल यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं, लेकिन भाव 160 का 10 रुपए हो गए, बिकॉज ड्यू टू द कंपटीशन। हम्म वो एआई कैसे काम करेगा, लेकिन यूज सब लोग करेंगे उसको, कंपनी प्रॉफिट करेगी नहीं करेगी, और इन लोगों ने जो डिसीजन लिए हैं वो प्रॉफिट होंगे कि नहीं होंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है 1 आध महीना 1.5 महीना हमें और देखना है। बट बिफोर दैट आई एम थिंकिंग टू हैव ए कॉन कॉल विद द फंड मैनेजर। अभी जो ओके मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं इवन आईटी में, अभी वो लोग भी डरे हुए हैं। कल ही एक बात हुई, हमारे प्रसाद सर से ही बात हुई है कि इन लोगों को अभी जॉब का डर है। तो नाउ दीज पीपल आर वर्किंग अराउंड 20 to 30% मोर इन ए कंपनी। हम्म
तो मार्केट में नैरेटिव चेंज होने में टाइम नहीं लगता। अब उनको डर लग रहा है। मेरा जितने भी लोगों से बात हुआ है जिनके हम पोर्टफोलियो देखते हैं, सब लोग खुद ही बोल रहे हैं कि शायद पता नहीं 5-6 साल के बाद मेरा जॉब रहेगा कि नहीं। नाउ दे आर गेटिंग द थ्रेट्स एंड नाउ दीज पीपल आर वर्किंग 20% हायर एफिशिएंसी एंड वर्कलोड। हम्म, तो उसे कंपनी ने अगर समझो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लिया तो नैरेटिव बदलने में टाइम नहीं लगता, ऐसा मेरा हम्म, बोलना है। सो वी विल ओके, वेट फॉर सम टाइम। ये बीच में क्राइसिस और आ गया एक्चुअली। ओके, ओके, तो ओके, फिर भी हम लोग काफी, हमारा भी काफी क्लाइंट का पैसा है उसमें, ऐसा नहीं है। रिटर्न भी बहुत जबरदस्त थे उसमें, लेकिन ये जो आप बोल रहे हो एकदम से फर्क पड़ गया। ओके, ओके। चलो, थैंक यू राम कुमार। या थैंक यू। Sir, can you please tell me what is passive allocation in the portfolio? Who is speaking? Shrutika. Kritika Vani. Okay. What is the passive allocations? तो पैसिव एलोकेशंस में हम अभी पोर्टफोलियो में जनरली इंडेक्स फंड देते ही है। जब भी कोई 100 रुपए देता है और अगर मैं मुझे इक्विटी में 60% वगैरह एलोकेशन करना है, 50% एलोकेशन करना है, तो लास्ट 2-3 ईयर से हम लोग जनरली इंडेक्स फंड भी देते हैं। इंडेक्स में जूनियर इंडेक्स फंड भी है। अभी तो बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। सिल्वर ईटीएफ है, तो सिल्वर गोल्ड के ईटीएफ हैं, इवन सिल्वर गोल्ड का ईटीएफ है। तो इन्वेस्टमेंट इन पैसिव फंड वी आर इन्वेस्टिंग थ्रू इंडेक्स फंड, और अभी हम लोग Okay. उस फंड में इन्वेस्ट करवाते हैं। और मतलब एलोकेशन में मैं देता ही हूँ, बिकॉज सम टाइम क्या होता है कि मार्केट ऊपर चली जाती है लेकिन हमारे फंड ऊपर नहीं जाते हैं, बिकॉज लैगिंग पीरियड जिसको बोलते हैं कि 1.5 महीने बाद हमारा फंड चलने लगता है, सबसे पहले इंडेक्स ऊपर दिखने लगता है। तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट है कि वी शुड एलोकेट सम फंड इन इंडेक्स फंड ऑल्सो और इन पैसिव। Right. Okay. और एक चीज, और जब हम कहते हैं कि 10% हमें SIP एवरी ईयर इंक्रीज करनी चाहिए, तो या हमारा मंथली जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका 10% या किसी जो फंड में इन्वेस्ट करना है स्पेसिफिक उसका 10%? आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10%। जनरली एक थ्योरी है कि आपकी कोई भी इनकम है, जो सैलरी करते हैं या सैलरी कमाते हैं या बिजनेस करते हैं, एक एवरेज 15 से 20% का बिजनेस में या सैलरी में ग्रोथ होता है। ग्रोथ के साथ साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो आपको उसको मैच करने के लिए जितनी आपकी सैलरी बढ़ी है उस प्रोपोर्शनेट में आपको एसआईपी की अमाउंट बढ़ानी है। ओके, तो मतलब टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट का 10% वो किसी और फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, वो तो जरूरी फिर नहीं कि पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग में डिस्कशन के बाद आएगा कि उसी फंड में करना है या कोई नई स्कीम लेना है। अभी आजकल सॉफ्टवेयर में सब कुछ प्रोविजन होता है। जैसे मेरी एसआईपी 10,000 की चल रही है, मैंने ऑटो ट्रिगर में ही डाल दिया कि मुझे नेक्स्ट ईयर में 10% बढ़ाना है, तो उसी फंड में 10,000 की जगह 11,000 की एसआईपी जाना चालू हो जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द लॉट ऑफ इनोवेशन इन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे बार बार दोबारा से फॉर्म नहीं भरना पड़े, दोबारा से लिंक को अप्रूव नहीं करना है, बाद में 1 साल बाद कौन ध्यान दिलाएगा कि आपको अभी मतलब 10,000 की एसआईपी 11 की करनी है, फिर उसमें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी सॉफ्टवेयर में और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर में ये सब प्रोविजन इनबिल्ट आ गए हैं, तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। या ओके। तो इसको ओके। डिसिप्लिन अप्रोच बोलते हैं। अब जैसे 1 महीने 1 साल बाद मैं आपको बोलूंगा कि एसआईपी आप बढ़ाइए, 10,000 की 11,000 करिए, आपके एसआईपी में माइनस रिटर्न दिख रहे हैं, तो जब हम कॉल लेते हैं तो लगता है फिर रहने दो, अभी नहीं बढ़ाते हैं। बट अगर आप सिस्टमेटिक पहले से ही बता दोगे तो अभी एक्चुअली नीचे के लेवल पे आपकी बाइंग होगी एसआईपी में। तो हम्म। हमारा जो पर्सनल सजेशन रहेगा, आप पहले से ही डिसाइड करके इंक्रीमेंटल एसआईपी का ही फॉर्म भरना चाहिए। हम्म। ओके। वो इंक्रीमेंटल 5% भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 10% ही करना है। दैट दैट यू कैन डिसाइड, हम्म। बट इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको अमाउंट तो बढ़ानी चाहिए। राइट, राइट। ओके, या थैंक यू। थैंक यू। व्हाट अबाउट द ईटीएफ इन्वेस्टमेंट इन दिस पीरियड? तो सर ईटीएफ और फंड में सुनील, कौन है? सुनील देश पांडे है क्या? सुनील इज हैविंग वन क्वेश्चंस। हाँ, सुनील देश सर। हाँ, तो सर ईटीएफ जो है ना, ईटीएफ और इंडेक्स फंड में फर्क इतना ही होता है
ETF में आपको रियल टाइम NAV मिलती है। जैसे आज सुबह में निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट माइनस थी, बाद में कुछ 125 पॉइंट ही माइनस रह गई। सपोज आप ETF में निफ्टी खरीदते हो सुबह के टाइम में, तो आपको 23,400 का भाव मिलता था, ठीक है, लेकिन निफ्टी क्लोजिंग में 500 पॉइंट नीचे आ गई। तो जिन्होंने इंडेक्स फंड खरीदा उनको क्लोजिंग की NAV मिलेगी। तो अगर मैं इंडेक्स फंड खरीदता हूं तो मुझे एंड ऑफ द डे की NAV मिलती है, तो बाय डिफॉल्ट उसको 500 पॉइंट नीचे में इंडेक्स फंड मिलेगा। जिसने ETF खरीदी किया सुबह के टाइम में उसको 23,400 का रेट मिल चुका है। तो ETF में क्या होता है, जो ट्रेडर मेंटेलिटी के लोग होते हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट परचेज करना है कि ये रेट में ही मुझे खरीदी करना है, तो वो ETF खरीदी करेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो जनरली वो इंडेक्स फंड खरीदी करेगा, क्योंकि ETF के अंदर में आपको ब्रोकरेज भी लगता है, बाई सेल के लिए STT वगैरह सब कुछ लगती है। इंडेक्स फंड के अंदर में आपको कोई खर्चा नहीं लगता है। एंड सेकेंडली यू कैन हैव ए प्लान, यू कैन हैव ए सिस्टम। तो हम इंडेक्स फंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी में डे टू डे ट्रेडिंग करनी है या वीकली ट्रेडिंग करनी है तो आप ETF में जाइए। अब आपको मैंने ये नुकसान वाला सौदा देखा है, अभी इसी में ETF में प्रॉफिट वाला सौदा हो सकता है कि जैसे आपने सुबह लिया 150 पॉइंट निफ्टी माइनस था, शाम को बाउंस बैक होके 500 पॉइंट प्लस हो गई निफ्टी, तो ETF वालों को फायदा हो जाएगा। बट ये सब चीजें बहुत टेम्पररी एंड मोमेंटरी होती हैं। हमें अगर 200-500 पॉइंट के लिए ETF या इंडेक्स फंड खरीदी करना है तो ETF इज ऑलवेज बेटर। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF और इंडेक्स फंड में कोई फर्क नहीं है। इंडेक्स फंड इज थ्रू म्यूचुअल फंड आप बाई करते हो, ETF आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी करते हो। दोनों में NAV में कोई फर्क नहीं आता, एक्सपेंस रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन अगर आप ETF खरीदी करते हो वहां जॉबिंग भी होती है। आप देखोगे रेट 238.45, सेलर में 238.95 आएगा, ठीक है। तो जॉबिंग का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंडेक्स फंड में देयर इज नो जॉबिंग। बायर का भी रेट 238.45 है, सेलर का रेट भी 238.45 होता है। तो ये चीज बहुत लोगों को समझ में नहीं आती ETF में। जब आप गोल्ड का ETF खरीदी करते हो, सिल्वर का ETF खरीदी करते हो, तो उसके अंदर में जॉबिंग की वजह से अगर आप पैनिक में खरीदी करते हो तो 0.5% का तो जॉबिंग में ही फर्क आ जाता है, प्लस 0.25 या 0.2% का आपका ब्रोकरेज में फर्क आता है। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ETF ठीक है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग ETF. I think I have answered your questions. एक only 30 seconds के लिए can you open your video so that we can take some screenshot. This is required for the compliance purpose. So we can take who is there, because somebody is logging from the mobile and mobile का नाम आता है। So for 30 seconds only, if you can open your a video call, then we can take some screenshot. Any more questions? Yeah, thank you. So just 1 minute and yeah. Hi, Naraji sir. Hi, Nice to see Dilip. you. So yeah, okay. Lelia, sir. Okay, so you can have your own, you can hide yourself, no problem, because थोड़ा bandwidth कम हो जाता है वीडियो से. Any more questions? If you ask me. कुछ ये चैट बॉक्स में है ना? Any more questions? This is our QR code. Please take the scan. Also, we have put up on the chat box our link. We are on the Google page, Google business page, and happy to announce that we are number 1 in Pune in Maharashtra about the
most wanted wealth advisory company in Pune because we have the investment license, investment advisory license, as well as financial planner. Search in ChatGTP that the best investment advisor or financial planner in Pune and Maharashtra, we are coming first. And because due to the you people have given so many good review, and we are getting inquiry from lot of NRI clients, those who are in the IT sectors. So if you search on ChatGPT, the best financial planner in Pune, Midas Wealth coming in the first place. So I ask you, those who have not given the review, please give the review, and I like to hear you from that Google page. Yeah, any more questions, or should we wind up? चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं? Okay. So if there is no more questions, then should we close? Sikre sir, Rajendra Sikre sir, Atul Damne. Yes, sir. Yes. Sir, I joined late, so Yeah, no problem. But question तो सबके same है. करीब yeah. करीब. Yes. So I just listened to all the replies. Thank you, sir. Yeah. Any specific questions? तो मैं एक लास्ट में एक चीज बताता हूं जो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि जब जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, मार्केट में सब कुछ नीचे आता है, ठीक है, दोज हु आर इन द ट्रेडिंग स्पेशली एंड दोज हु आर डूइंग द सेल्फ ट्रेडिंग, उसके लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको। तो जब जब मार्केट में ऐसे करेक्शंस आते हैं तो जो हाई बीटा स्टॉक है वो ज्यादा करेक्ट होते हैं, कुछ शेयर्स कम करेक्ट होते हैं, लेकिन जब मार्केट बाउंस बैक करता है, अब मेरे पास एक समझो 10 शेयर्स का पोर्टफोलियो है, मार्केट गिरा, कुछ शेयर अपने 20% गिरते हैं, कोई शेयर अपने 40% गिरते हैं, कोई शेयर अपने 2% ऊपर रहते हैं। जब मार्केट बाउंस बैक करता है तो वही शेयर नहीं बढ़ते हैं। ये आप बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है, हर एक बुल साइकिल में अलग स्टॉक सामने आते हैं, अलग सेक्टर सामने आते हैं और अलग कंपनियां सामने आती हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको लगता है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा उसका जो पोर्टफोलियो है वो वैसा का वैसा फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा, उतना परफॉर्म करेगा, या उसके पास जो स्टॉक्स है उसी प्राइस में, ओरिजिनल प्राइस में आ जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। एंड दैट्स वाई एक रिसर्च है कि इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ऑलवेज अंडर परफॉर्मिंग द पोर्टफोलियो ऑफ निफ्टी और पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिव फंड जो होता है। नाउ आई कैन गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दैट। 5-6 साल पहले हिंदुस्तान लीवर बहुत चलता था, 3 साल से चला नहीं। अब जिनके पास 200 रुपए का हिंदुस्तान लीवर है वो 200 से लेकर 2600 तक जाते टाइम में उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुई। ही वॉज थिंकिंग के उसी टाइप की ग्रोथ हिंदुस्तान लीवर में अगले 10 साल में भी आएगी, वो नहीं आई। सिमिलरली आप बजाज फाइनेंस का नाम दें, बजाज फाइनेंस कोविड के टाइम में 400 का भाव है, 800 का भाव है, फिर से 3000 का भाव हो गया। लेकिन अब बजाज फाइनेंस की एक कोई भी स्टॉक्स है ना, वो एक लेवल के बाद मैच्योरिटी लेवल तक आता है तो उसके अंदर में आपको इतनी ग्रोथ नहीं दिखती। इवन सबसे बड़ा एग्जांपल है टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो का। तो टीसीएस इन्फोसिस ने मल्टी मिलियन लोगों को बनाया, लेकिन जिन्होंने भी टीसीएस इन्फोसिस 5 साल पहले लिया है उनके पास कुछ भी पैसा नहीं बना है। तो जिसको आप मिलेंगे 15 साल वाले आदमी को मिलोगे तो वो बोलेगा आई मेक बिग मनी इन टीसीएस इन्फोसिस। अगर आप किसी को 3 साल पुराने आदमी से मिलोगे बोलेगा मुझे उसमें कुछ भी पैसा नहीं बना है। डीमार्ट का भाव एक टाइम में करीब कितना 7,500 रुपए हो गया था, शायद 7,500। अभी वो जब लिस्टिंग हुआ था कुछ 900 रुपए में आया था उसका आईपीओ, 900 में आके 1800 हुआ, 1800 का 7,500 हो गया, 7,500 के बाद आज का भाव 3,500 रुपया है। लेकिन हम डीमार्ट में जाते हैं, डीमार्ट वैसे ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसका पी कितना था, उसका पी था कुछ 175, आई थिंक 150। तो क्या होता है कि जब मार्केट में बाउंस बैक होता है तो हर एक बार जो पब्लिक के पास शेयर्स होते हैं वो शेयर नहीं बढ़ते हैं,
मतलब सभी कुछ नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मेरे पास जो 20 शेयर हैं, जब मार्केट में बाउंस बैक होगा, 20 में से मेरे 12 शेयर ही पढ़ते हैं, 8 शेयर वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। इवन निफ्टी में 20% का अपसाइड भी आ जाए, जब मार्केट में करेक्शन आता है, आपके पास जो खराब शेयर है वो और भी नीचे जाते हैं। दैट्स वाई मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कॉमन पब्लिक, जिसके पास स्टॉक में एडवाइजरी जो नहीं लेते हैं, जो लोग कोई प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते हैं, उनके पोर्टफोलियो को मैं ऑलवेज बोलता हूं कि यू शुड आइदर टेक द प्रोफेशनल एडवाइस और यू शुड गो थ्रू द म्यूचुअल फंड और पीएमएस। कुछ कुछ शेयर लोगों के पास जंक शेयर पड़े रहते हैं, वो कभी बढ़ते नहीं है। अब नुकसान हो रहा है तो उनको बेचने को भी नहीं आता है, ना वो चेंज कर पाते हैं, एंड वो पैसा कहीं भी यूटिलाइज भी नहीं होता है। जब कोई भी हम टेक्निकली टीवी पे देखते हैं, वो बोलता है कि इसमें कुछ भविष्य नहीं है, तब वो बेच के देता है। तो ये एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव सीन 3-4 बुल मार्केट, 3-4 बियर मार्केट। अब जो बुल मार्केट आएगी, जो पब्लिक के पास जो शेयर्स हैं, एक एग्जांपल में आगे बताता हूँ। ट्रेंड का भाव 1200 रुपए से 7,500 रुपए हो गया, 50% करेक्ट हो गया। अब फिर से 7,500 आएगा क्या? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो घर घर में वो शेयर चला गया। तो जो शेयर घर घर में चला जाता है उसमें बुल मार्केट नहीं आता है। उसका रीजन सिंपल है, जो चीज पब्लिक के पास है, अगर मुझे बढ़ाना है उसका भाव, तो आप बेचने को आ जाएंगे। सपोज मैं और आप दोनों हैं यहाँ पर सामने स्क्रीन के, और मुझे कोई शेयर्स का खरीदी करके मेरे को पोर्टफोलियो की प्राइस बढ़ानी है, हमें फंड मैनेजर। तो मैं अगर ट्रेंड का शेयर लेता हूं तो आपके पास वो ट्रेंड का शेयर है, तो जैसे ही मैं खरीदी करूंगा आप बेचने को आ जाओगे, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं ऐसे शेयर खरीदी करूं जो पब्लिक के पास नहीं होते। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जब जब मार्केट में बुल मार्केट आता है, यू शुड टेक द प्रोफेशनल एडवाइस फ्रॉम द जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, या जो भी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को रिसफल करते हैं। बिकॉज बहुत सारे नैरेटिव चेंज होता है। अब जैसे एनर्जी क्राइसिस है, कल मोदी साहब ने बोल दिया वी शुड बी सेल्फ रिलायंस ऑन द एनर्जी। तो क्या हो गया, कल के दिन सोलर के भाव बढ़ गए, एनटीपीसी का भाव बढ़ गया, पावर ग्रिड का भाव बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट का एम्फेसिस उसके ऊपर ज्यादा जाएगा। ऐसे सेक्टर को सहूलियत ज्यादा मिलेगी, पीएलआई स्कीम आएगी, कुछ पैकेज आएंगे उन लोगों के लिए कि जिससे हमारी जो रिलायंस है अदर एनर्जी के ऊपर वो कम हो जाए। सो एवरी 3 इयर्स में हर एक बार नया सेक्टर उभर के आता है। और अगर आप देख तो निफ्टी निफ्टी के अंदर में भी वो स्टॉक्स चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उससे पहले से खरीदा हुआ, उससे प्यार हो जाता है, उससे इमोशनल अटैचमेंट होता है। हमें लगता है कभी तो ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ता नहीं है। तो ये एक बहुत स्पष्ट मेरा एक्सपीरियंस है। एवरी टाइम देयर इज ए डिफरेंट स्टोरी, एवरी टाइम देयर इज ए डिफरेंट स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। हमें ये मालूम पड़ता है 2 साल बाद कि हमारा तो पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा, ये फंड बढ़ गया, ये इंडेक्स बढ़ गया। फिर हम कहीं दूसरे के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई देखो क्या इसमें एनालिसिस करना है, तब वो बोलते हैं कि सर ये तो कुछ चल नहीं रहा, बेच दो। उसके बाद वो बेच देता है। तो ये मेरा पर्सनल स्टोरी आपको बताई। सेकेंडली, मार्केट में शॉर्ट टर्म में 3 चीजें बहुत बड़ी इफेक्ट करती हैं। मार्केट घट रहा है तो मार्केट घटने में 4-5% ही स्टॉक बेचा जाता है। जैसे आप और हम हैं, हमने कुछ बेचा है क्या? अभी तक कुछ भी नहीं बेचा, खरीदा है। हमने एसआईपी के थ्रू कुछ ना कुछ खरीदी किया है। फिर भी मार्केट घट क्यों रहा है? क्योंकि उसके अंदर में 3 प्लेयर्स होते हैं। एक है इन्वेस्टर, दूसरा स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर होता है इंस्टीट्यूशंस लेवल पे, वो शॉर्ट कर रहा है मार्केट को। शॉर्ट करने से स्टॉक नीचे आ रहा है, इंडेक्स नीचे आ रहा है। इसमें तीसरा होता है स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर का क्या होता है? उसका स्टॉप लॉस, जिसको हम लोग बहुत सरल भाषा में स्टॉप लॉस बजना बोलते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जो आदमी 25,000 में निफ्टी खरीद के बैठा है, वो 23,000 में बेचना पड़ता है, क्योंकि उसका जो लॉस करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। चौथा प्लेयर इसके अंदर में आता है, वो है बैंक। अब मैंने समझो मार्जिन पे कोई निफ्टी खरीदी किया 25,000 पे, वो 23,000 हो गई है, मुझे नुकसान सफिशिएंट हो गया है। मैं पैसा बैंक को दे नहीं रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज को दे नहीं रहा हूँ। तो बैंक अपना मार्जिन मनी कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो डीमेट में शेयर्स होते हैं वो आपको बिना पूछे बेच देता है। तो ये जो फोर्थ वाला ट्रिगर आता है, वहां पर मार्केट का पैनिक बटन प्रेस होता है और वो मार्केट का बॉटम लगता है। आप देखिए कभी भी जब भी
ट्रम्प टैरिफ ने 7 अप्रैल को जब टैरिफ लगाया, मार्केट उसके पहले नीचे 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 आ रहा था, उसके बाद बॉटम आया, एक दिन में कुछ 1,500 पॉइंट निफ्टी नीचे आई, बाउंस बैक हुई, उसके बाद नीचे नहीं आई, क्योंकि वो लास्ट स्टेज जो पैनिक बटन दबता है उसमें पूरा कॉमन आदमी मरता है। सो दो दैट्स वाई जो बताया गया है कि फ्यूचर ऑप्शन में 90% लोगों को नुकसान होता है, इसी कारण से होता है। सो देर आर 4 प्लेयर, ये जो शॉर्ट टर्म में बहुत फास्ट काम करते हैं, आम आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता हो क्या रहा है। तो अभी फोर्थ वाला बटन अभी तक आया नहीं। आप जब टीवी में न्यूज देखेंगे, पेपर में न्यूज देखेंगे कि ये ब्रोकर निपट गया, ये इन्वेस्टर निपट गया, समझो दैट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, क्योंकि उस टाइम उसकी पोजीशंस को इंस्टीट्यूशंस ने सेल कर दिया है। अब उसके बाद कुछ नहीं बचा है, एंड बाय बाय टाटा, वो मार्केट से टाटा करता है और वो बॉटम में बेच के बाहर निकलता है। दैट इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। I have seen, I am in this market from 93, 94. Majorly, I am active in the market from 2005. लेकिन मैंने ये देखा है कि जब जब इस टाइप की स्पेकुलेटर की पोजीशंस फूटती है, वो मार्केट का बॉटम होता है। तो ये मेरा एक, मैंने जितने लोगों से बात किया लास्ट के 3-4 साल में, बहुत लोगों को लगा कि म्यूचुअल फंड एक बोर इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में कुछ रिटर्न ज्यादा नहीं आते हैं, स्टॉक्स में हम रिटर्न बना लेंगे। जब बुल मार्केट आता है उनके सब स्टॉक चलते हैं, स्टॉक चलने के बाद उसको रिटर्न भी अच्छे आते हैं। जब मार्केट करेक्ट होता है उसमें उनके शेयर 40-40, 50-50% नीचे आ जाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड अभी भी, किसी का भी अगर पोर्टफोलियो देखते हैं, जिनका भी 5 साल पुराना पोर्टफोलियो है, आज भी 10 से 12% का CAGR है। अच्छे टाइम में उनका CAGR 17 से 18% था, लेकिन नुकसान में एक भी आदमी नहीं मिलेगा। इवन यू सी योर ओन पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो 3-4 साल पुराना है, स्टिल यू आर इन प्रॉफिट। बट आपके पास अगर 3-4 साल 2 साल पुराना स्टॉक का पोर्टफोलियो है, यू कैन सी इट विल बी इन द माइनस। एक्सेप्शनल केस में नहीं बोल रहा हूँ, जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, उनका पोर्टफोलियो प्लस हो सकता है। बट आम आदमी का आई कैन गिव द गारंटी, आउट ऑफ 10 पीपल 8 पीपल विल बी इन द लॉस इन द स्टॉक, डायरेक्ट स्टॉक्स में। तो ये मेरा एक लर्निंग मैंने एक्सपीरियंस किया है। Anything you have, you can contribute your own experience. But I have seen 4-5 bull and bear market, and every time I have seen different stock जो हमें मालूम नहीं रहते। जब वो शेयर 50% बढ़ जाता है, तब तो पब्लिक को मालूम होता है ये शेयर क्यों बढ़ रहा है। जैसे सुजलॉन का शेयर 7 रुपए था, जब 45 का भाव हो गया सुजलॉन का, जब पब्लिक को मालूम पड़ा कि सुजलॉन भी एक बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो कंपनी 600 रुपए से 4 रुपए आई थी। सो एनीथिंग you want to be shares with you with the public, सब लोग एक दोस्त हैं, we can have our own discussions also as a brainstorming session. सुनील मोरे सर बोल रहे हैं what is AI prediction? Am I right? Are you asking these questions? मोरे सर, हाँ यस सर, मैंने पूछा AI है। predictions का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब AI का फ्यूचर बोल रहे हैं कि AI, हाँ AI इस सिचुएशन में हाँ, AI का प्रेडिक्शन क्या है? नहीं, एआई तो कैसा है कि घर घर में आने वाला है, एआई के सिवा जिंदगी चलने वाली नहीं है, वो पार्ट ऑफ द हाँ लाइफ होने वाला है। लेकिन उस एआई में जो कंपनियां हैं वो पता नहीं वो बचेंगी कि नहीं बचेंगी। जैसे .com के टाइम में है, कुछ कंपनी सरवाइव कर गई, कुछ कंपनी डूब गई। तो एआई राइट। में भी ऐसा ही बोला जा रहा है कि जो स्टार्टअप की टाइप की कंपनियां हैं, दे आर पंपिंग लॉट ऑफ मनी इनटू दैट, बट कंपटीशन में कौन टिक पाएगा, कौन नहीं टिक पाएगा। तो इवन दो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी ओपन एआई है, चैट जीटीपी है, स्टिल दे आर बर्निंग मनी, बट वॉल्यूम Right. बढ़ रहा है, एवरीबडी यूजिंग। तो ऊपर से ब्रांड हमें अच्छा दिख रहा है, लेकिन दीज पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। और अभी लेटेस्ट में उसमें करेक्शन हैवीली आ रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर में, आप फंड के थ्रू जाइए, अगर एआई से रिलेटेड कोई फंड है, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। अब इंडिया में एआई का 3-4 महीने बाद आपको पॉपकॉर्न जैसी कंपनियां शायद इंडिया में भी दिखने लगेंगी। और हाँ एआई का नाम आगे लगाया, जैसे पहले .com का नाम आगे लगाया तो भाव बहुत बढ़ता था, वैसा शायद इसमें भी हो सकता है। बट नाउ पीपल आर मोर इन्फॉर्म देन 2000 में मोबाइल इतना नहीं था, इंटरनेट नहीं था, एडवाइजर्स Correct. इतने नहीं थे। शायद इस टाइम में उस टाइप की मिस्टेक्स नहीं होगी, जैसे इस टाइम में आम पब्लिक को इतनी चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही, क्योंकि
आम पब्लिक का पैसा आपको फ्रेंकली बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में ज्यादा है, ना कि डायरेक्ट स्टॉक्स में। ओके, तो स्टॉक्स में जब पैसा रहता था, आपने भी एक्सपीरियंस किया रहेगा, 20-20% का करेक्शन आता था मार्केट में, बराबर है 30-30% का करेक्शन आता था। आज भी हम्म। निफ्टी 3.5% प्लस है। हम्म, तो दुख इस बात का है कि रिटर्न नहीं बना, लेकिन इस बात का दुख नहीं है कि हमारा माइनस हो गया, 20% माइनस, 30% माइनस। ये सब हमने देखा है 2008 में। राइट। वो सिचुएशन नहीं है एटलीस्ट, बिकॉज मार्केट इज गेटिंग मैच्योर हम्म, and people are taking advice from the organized sectors, those who have the knowledge, those who have the हम्म, क्या बोलते सर्टिफिकेशंस है, ड्यू डिलिजेंस है, सेबी की तरफ से हमारा भी ऑडिट होता है, तो एक प्रोसेस के थ्रू हम लोग जाते हैं। तो राइट। कहने का मतलब ये है कि पहले जैसी सिचुएशंस नहीं है, पहले 20-20% माइनस होते थे, अभी प्रॉफिट में नुकसान हो गया लोगों को। जो नुकसान होगा वो प्रॉफिट में होगा। यस यस। अगर किसी का भी 5 साल का पोर्टफोलियो में आज भी देखता हूँ, एक 11 से 12% का सीएजीआर अभी भी दिखता है। राइट, राइट। मुझे मुझे एक्सपीरियंस है वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो आराम से बढ़ता है, एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है। यस करेक्ट। तो मार्केट में बाउंस बैक आएगा, आपका पोर्टफोलियो गारंटी से बाउंस बैक होगा, ये हम बोल सकते हैं। राइट, राइट। अब वो मैं एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस। बट हम यस। एक फैमिली के जैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, मतलब मेरा जो रहा है कि जहाँ मैं पैसा डालता हूँ वही क्लाइंट का पैसा डलवाता हूँ। इसलिए मैंने बहुत बार इंट्रोडक्शन में बताया कि बीइंग एन इंजीनियर व्हाई व्हाट आई एम डूइंग हियर, बहुत लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा मैं खुद के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता था वही पब्लिक को मैंने दिया है। आज भी अगर देखोगे टेक्नोलॉजी फंड जैसे सत्य ने बताया, मेरे पास आवाज भी। आवाज आवाज वाइब्रेट हो रही है आपकी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जैसे सतीश सर हमारे मित्र है, उनके पास हम्म, आईटी फंड है, टेक्नोलॉजी फंड है, मेरे पास भी है, हम्म, मैं अभी भी पोर्टफोलियो शेयर कर सकता हूँ। तो आई एम ऑल्सो राइट। होल्डिंग दैट फंड। अच्छा रिटर्न था, लेकिन थोड़ा सा अभी गड़बड़ हो गई। ठीक है, लेट्स सी, हमारे लिए जो डिसीजन लेंगे आपके लिए भी डिसीजन लिया जाएगा। करेक्ट। राकेश, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक देर इज नो क्वेश्चंस। राजेंद्र सर, राजेंद्र चौधरी, यस सर। या कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो अभी क्या, हाँ, कुछ एफडी में पड़े हैं तो उसमें कुछ डाल सकते हैं क्या, 1-2 लाख कहीं में? हाँ थोड़ा सा डाल सकते हैं, बट एक हम पर्सनली पहले पोर्टफोलियो देखेंगे एंड हाँ हाँ। एक बार बात भी करेंगे। कॉमनली आंसर तो देना अच्छा भी नहीं है। सो नहीं नहीं। डेफिनेटली वी विल लुक आउट द पोर्टफोलियो एंड वी विल डिस्कस पर्सनल रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि क्या करना है। यस सर, कभी बात कर सकते हैं? या मंडे को, कल भी कर सकते हो। टुमारो आई एम गोइंग टू इंदौर एक्चुअली, एक हमारा हाँ हाँ एलुमनाई मीट है, बट हाँ हाँ फोन हाँ। पे तो अवेलेबल रहूंगा दिन भर, ऐसा कुछ ओके, प्रॉब्लम। या ठीक है ठीक है, राकेश, तो कॉल कर दो। राकेश सर, हाँ जी, हाँ जी। बोलो सर, कुछ कुछ आई सेवा थिंक आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग तो कवर हो ही गया है। अब अगर यही है कि वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और देन कुछ डेफिनेटिव सिग्नल आता है तो सम मोर मनी कैन बी पम्प्ड, या तो इधर म्यूचुअल फंड और निफ्टी और स्टॉक समथिंग। यस तो यस। कोई कोई सेक्टर वेक्टर अभी कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा फ्यूचर में जो बढ़िया लग रहा हो कुछ? जैसे आईटी तो अभी डाउन है ड्यू टू दिस एआई एंड सो ऑन सो फोर्थ। आई डो नॉट नो हाउ अबाउट दिस एनर्जी, या ये ऑयल कंपनीज, या दिस आई डो नॉट नो, या और कोई फ्यूचर में कोई और ऐसा नया सेक्टर जहां कुछ पोजीशन ली जा सके समथिंग। थोड़े से प्रसाद सर ने भी बताया था, और जो हमारी एक स्लाइड थी उसमें कमोडिटी, एनर्जी और मेटल में था। तो हमने जितना भी सोचा है अभी, तो एआई की वजह से डेटा सेंटर एंड जो एआई को पावर बहुत लगती है। तो ऐसा चाइना ने यूएस को मतलब आगाह किया है कि आप एआई एआई चिल्ला रहे हो,
लेकिन एक दिन आपके यहाँ पावर सप्लाई का कट ऑफ हो जाएगा, मतलब लोड शेडिंग हो जाएगी, बिकॉज इतनी पावर उसमें लगती है। सो पीपल आर थिंकिंग अबाउट द एनर्जी सेक्टर, जो लोग एनर्जी डेवलप करते हैं। तो एक मैंने एक मतलब पर्सनलाइज रिकमेंडेशन नहीं है, बट आई हैव लर्न दैट के एनर्जी के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी ड्यू टू दिस एआई, क्योंकि आप 24 घंटे बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, 24 घंटे सर्वर चालू रहता है एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट। तो वो एक सेक्टर है, बट वो सेक्टरल फंड हो जाता है। जैसे आज हमने देखे रेलवे के ऊपर गए, नीचे आ गए। लॉन्ग टर्म में डिफेंस भी एक बड़ा अच्छा सेक्टर है, क्योंकि जितना भी अभी समझो एम्यूनिशन खत्म हो गया लोगों का, फिर से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ जो लोग भी एम्यूनिशन और डिफेंस में सप्लाई करते हैं उनको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। सब मिसाइल ईरान की खत्म हो गई, यूएस की भी खत्म हो गई, तो इंडिया से मंगाएंगे। जो लोग डरे हुए हैं वो भी इंडिया को ऑर्डर देंगे, तो ब्रह्मोस जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो डिपेंड, बट ये थोड़े से सेक्टर छोटे हैं, बस इतना ही एक फर्क है। डिफेंस का कॉस्ट एडवांटेज है। हाँ यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हाई कॉस्ट रहता है। हाँ इंडिया में डिफेंस में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रिलेटिवली काफी कम कॉस्ट में होता हाँ। है। तो ऐसे जो आपने बोला, एक वी कैन से एक आइस ऑन द थोड़े से टिप है वो, लेकिन सब सेक्टर बहुत छोटे हैं, बट स्लोली स्लोली यू कैन गो थ्रू एसआईपी रूट, और छोटा छोटा लमसम आप डाल सकते हो। सिमिलरली कमोडिटीज का भी है, कमोडिटीज में भी काफी कुछ रैली आई थी मेटल में। तो अभी ये पूरा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, लाइक यूक्रेन है, रशिया है, मिडिल ईस्ट है, जो भी तोड़फोड़ हुई है, अल्टीमेटली जब सेटलमेंट होता है, अभी ईरान ने बोला है मेरे को जितना तोड़फोड़ तुमने करके दिया है उसका $600 बिलियन मुझे दे दो, मैं युद्ध रोक सकता हूँ। तो ये सब पैकेज डीलिंग होती है। इवन यूक्रेन ने भी रशिया को बोला है कि आपने जितना मेरा नुकसान किया मेरे को उतना पैसा दे दो, मैं युद्ध रोक सकता हूँ। तो ये कोई भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। क्यों आया था? कि जितना भी ब्रिज टूटे हैं, प्लेटफॉर्म खराब हुए हैं, ये सबको ऑर्डर मिलता है, उसमें मेटल लगता है, लेबर लगता है, सब कुछ लगता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिलेटेड जो मेटल है उसमें भी हम कर सकते हैं, बट ये सब थोड़े से थीमेटिक चीजें हो जाती हैं, उसको वॉच करना पड़ता है। मतलब यू कैन नॉट गो ब्लाइंडली टू दैट, यू हैव टू बी कीप वॉच ऑन दिस टाइप ऑफ द सेक्टर। बट 2-3 साल के अंदर में काफी अच्छे रिटर्न देते हैं। तो ये तो पोर्टफोलियो में हम डिस्कशन के टाइम में बताएंगे आपको, जब भी डिस्कशन होगा था। ओके, गॉट इट। ये हाई रिस्क सेक्टर है तो इंडिविजुअल पर्सन के रिस्क एपेटाइट पे भी काफी कुछ हाँ। निर्भर होता है। अभी डिफेंस में आप देखेंगे वॉलेटिलिटी बहुत होती है, बराबर है। मतलब शेयर एकदम से नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कुछ न्यूज अच्छी आ गई, ऑर्डर बड़ा मिल गया, एकदम से ऊपर चला गया। तो वॉलेटाइल सेक्टर से, क्योंकि सेक्टर छोटा है और न्यूज बेस्ड ज्यादा है। या एनी मोर क्वेश्चन? अतुल सर, अतुल अतुल दामने सर, कुछ आपका एक्सपीरियंस बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि अभी जो नए एसआईएफ लॉन्च हुए थे, राइट? हाँ तो उस पे भी हमने एक डिस्कशन किया था मीटिंग में। करेक्ट। तो मान लीजिए, क्योंकि शायद एसआईएफ के लिए आज का दौर शायद पहली बार होगा, है ना, जो भी हो रहा है हाँ मार्केट में। तो हाँ आपका क्या उसमें एनालिसिस है कि लाइक हाउ एसआईएफ विल गो अहेड फ्रॉम दिस पोजीशन, कि जैसे कि उसमें लॉन्ग शॉर्ट होता है, ओके? हाँ। तो उस हिसाब से आपने कुछ सोचा जरूर होगा उसके ऊपर, तो थोड़ा बताइए। तो अभी तक जो एसआईएफ आए थे मार्केट में, उसमें जनरली हाइब्रिड एसआईएफ आए थे। हाइब्रिड एसआईएफ में क्या होता है कि 35% इक्विटी होता है और 65% के टाइप में वो हेज करता है। सो विच दीज एसआईएफ वाज टारगेटिंग द फंड वेयर यू हैव द फिक्स इनकम, और रीट जो एक मैडम ने बताया था, उससे ज्यादा 2-3% ज्यादा रिटर्न दे सकें और उसके अंदर में लिक्विडिटी रहे। इसलिए हमने एसआईएफ को ज्यादा प्रमोट नहीं किया, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारे पास बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड था। लेकिन अभी जो नेक्स्ट लेवल के एसआईएफ लॉन्च हो रहे हैं, जैसे अभी कल जो लॉन्च हुआ है उसमें लॉन्ग शॉर्ट फंड लॉन्च हुआ है। ये पहला लॉन्ग शॉर्ट फंड है जो प्योर इक्विटी वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के फंड्स धीरे धीरे अभी काफी लोगों ने, कैसा होता है, सेबी प्रोसेस होती है, आप अप्रूवल ले लो, 3-4 महीने बाद अप्रूवल आता है, तो आप सबको अप्रूवल मिल रहा है, एक बात। दूसरी बात, मार्केट भी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है। तो SIF विल बी द कैटेगरी वेयर
द एवरेज से अबव जो इन्वेस्टर है, जिसका पोर्टफोलियो 50 लाख के आसपास का है, उसको 1-2 SIF लेने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन जिसका पोर्टफोलियो 5 से 10 लाख है, 20 लाख है, उसको SIF से अभी भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम साइज ही 10 लाख का है। तो भाई 10 लाख का मतलब है कि उसको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, ऐसा सेबी समझ रही है। इसलिए आम पब्लिक को, जिनके पास 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है, उनको इस चक्कर में पड़ना नहीं है। So SIF, yes, it is going to be the one of the मेन प्रोडक्ट्स जो जो जिन लोगों को 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उन लोगों को SIF लेना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट भी समझना चाहिए। हमने जो स्लाइड बताई थी उसके अंदर में जब मार्केट वन वे ऊपर जाएगा ना, तो SIF अंडर परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके अंदर में शॉर्ट भी है। बराबर है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब कुछ बढ़ता है। तो 8% कुछ शेयर बढ़ेंगे मेरे, और 2% जो बढ़ गए उसमें से मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट हूं उसके अंदर में। तो मेरा रिटर्न 6% ही बनेगा, और जो प्योर इक्विटी में बैठा है उसका 10% रिटर्न बनेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हमने चार्ट बताया था, लॉन्ग टर्म में जब अभी जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, इसमें ये ऐसा ये बहुत बड़ा काम करता था। एग्जैक्टली मेरा वही सवाल था कि या आज की जो भी मार्केट कंडीशंस है उसमें क्या SIF बाकी जो भी टूल्स है उसके मुकाबले शायद अच्छे रिटर्न दे। दैट यस, वाज डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में। और देखा मैंने पिछले 7 अप्रैल को भी मीटिंग किया था। हर साल में 2 बार या मिनिमम 1 टाइम कोई ना कोई कारण से मार्केट करेक्ट होता है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मिडिल ईस्ट का, ईरान जैसे, पहले बार अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था उसका यूरेनियम खत्म करने के लिए, तो वो पूरा टनल में जाके बॉम्ब गिरा दिया, यूरेनियम खत्म कर दिया। हमें लगा अभी वो खत्म हो गया, खत्म खेल, अभी बार बार नहीं होगा, अभी ये फिर से नया स्टार्ट कर दिया। सो एवरी ईयर यू विल गेट ए अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टमेंट, और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए या ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आपके बास्केट में होना ही चाहिए कि जब मार्केट नीचे जा रहा है, दीज प्रोडक्ट विल बी प्रोटेक्ट योर वेल्थ, और इवन जो डैमेज कम कर सके। तो एसेट्स एलोकेशन में हम अभी SIF भी डालेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि मान लीजिए कि अभी नई चीज है, पर अगर 2-4 फंड्स का एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, मान लीजिए अगले 1 साल में या 2 साल में, तो शायद हमें वो भी पता चलेगा, कुछ हिस्ट्री रहेगी अपने पास, है ना, कि हिस्ट्री तो इन अभी सच इसमें भी है। सिचुएशन परफॉर्म कैसे कर रहा है अभी ये जो सिचुएशन है आज की। तो SIF इसलिए तो देखिए, SIF के लिए अलग से एग्जाम हुआ हमारा, ठीक है। हम्म, आउट ऑफ, समझो एक 10 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में, ओनली 500 लोग भी SIF का एग्जाम पास नहीं कर पाए, क्योंकि स्पेशलाइज प्रोडक्ट नाम ही दिया है। आई एम वन ऑफ द पर्सन हु पास इन 1 गो, बिकॉज अपन इंजीनियर है और इतना ग्रेट, एक्सपीरियंस है। बराबर है। तो यस, उसके अंदर में डेरिवेटिव है, उसके अंदर में करेंसी है, उसके अंदर में इंडेक्स डेरिवेटिव है। कोई आम आदमी आउट ऑफ 20 ओनली 2 ही लोग पास हो रहे हैं उसमें। क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है वो, यस, एंड आई उसके एम जो वन भी ऑफ द पर्सन, मैं फ्रेंकली बोलूं, हमने CFP भी किया, और अपन सब एक ही कैटेगरी है, वी आर इंजीनियर, करेक्ट। वी आर प्राउड ऑफ यू का सर। दिमाग कैलकुलेशन में ज्यादा चलता है। सो यस यस, I gone through this exam and I passed the exam, and Midas Wealth is one of the few companies who have the authorized SIF license. तो एक सेशन शायद अभी नहीं, कुछ अभी दिनों में करूंगा या, मैं, अभी हाँ, करूंगा, तो क्योंकि और एक प्रोडक्ट बार नहीं थे करेंगे, अवेलेबल, और जो यस, आपने बोला टेस्टिंग नहीं थी उसकी अवेलेबल, तो अभी अभी थोड़ा प्रोडक्ट आ गए मिलेगा हैं। टेस्टिंग के यस लिए, यस फ्यूल यस। मिल गया। हाँ, टेस्टिंग तो, बैक टेस्टिंग तो इन्होंने भी की है, लेकिन उस टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे जो मुझे रिकमेंडेड करना है लोगों को। तो ये राइट, पहला प्रोडक्ट आया है, बंधन का लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसके मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में अच्छा आया। आई एम कन्विंस अबाउट दैट। सिमिलर, सेकेंडली, मार्केट भी अट्रैक्टिव लेवल पे, तो दोनों चीजें आ गई, मतलब सोने पे सुहागा जैसा है। मुझे तो यानी मेरी समझदारी इतनी है कि जो शुरू में हाइब्रिड फंड्स आए थे क्वांट का वगैरह, तो करेक्ट वो शायद बिल्कुल आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जब एंट्री हुई थी पूरे करेक्ट। यानी दुनिया में, तो वो हाइब्रिड से हुई थी, है करेक्ट ना, करेक्ट। हाइब्रिड व्हीकल से हुई थी। तो उसी तरह हाँ, वो शायद वो भी जा रहा है वो भी प्रोडक्ट उसी तरह से आगे आ रहा है कि करेक्ट शुरुआत करेक्ट। हाइब्रिड से हुआ है,
और फिर धीरे धीरे पता चलेगा शायद हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। कल मैंने उनको वही पूछा कि आपने लॉन्ग शॉट पहले क्यों नहीं लाया, तो उन्होंने बोला सर पहले सेफर टाइप का फंड निकालते हैं, अगर पहले फंड में नुकसान हो जाएगा तो ऐसा ही बदनाम हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन 100% परफेक्ट है कि उन्होंने पहले हाइब्रिड इसलिए लाया कि पहले लोगों को एक्सपीरियंस होने दो। अब जैसे Right. मार्केट इतना गिर रहा है, हाइब्रिड फंड जो है SIF का, उसका रिटर्न पॉजिटिव ही है, या क्योंकि उसमें वो शॉर्ट भी था और 25% के आसपास इक्विटी थी। तो राइट। इक्विटी मार्केट गिर रहा है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो 25% शॉर्ट भी बैठा है उसमें। यस यस तो आपने जो बोला स्टार्टिंग होती है सेफर साइड के फंड से, जैसे या जैसे बास्केट बढ़ती है वैसे वैसे रिस्की फंड आना चालू होते हैं। या एग्जैक्टली। तो हाइब्रिड पहले एडलवाइज का था, ये SBI का है, बाद में कौन क्वांट का भी था। तो ये सब हाइब्रिड SIF आए थे, अभी ये लॉन्ग शॉर्ट फंड आना चालू हो रहे हैं। तो इनका भी आया है, आज बिरला का भी मेरे को फोन आया था, बिरला ऑल्सो कम आउट विथ लॉन्ग शॉर्ट फंड, इवन बंधन हैज कम आउट विथ लॉन्ग शॉर्ट फंड। इसको लिए कैसा है कि ये फोन पे नहीं हम सेल कर सकते या रिकमेंडेड कर सकते, थोड़ा सा पर्सनलाइज डिस्कशन करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग है। और इसके लिए उसके लिए एग्जाम रखा है सेबी ने कि या आप इट शुड बी मतलब देयर। आप, हाँ, आप जाके दुकान में लाइफ बॉय दे दो तो वो लाइफ बॉय वैसा म्यूचुअल नहीं फंड है। चलेगा। हाँ ऐसा है वो। एग्जैक्टली। तो कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज, प्रोडक्ट है और हाँ, जरूरत अलग है उसकी, या तो जरूरत जरूरत के अलग है, हिसाब से। रिक्वायरमेंट कैसी है, आपके पोर्टफोलियो में कैसा स्ट्रक्चर है, कितने फंड्स हैं, उसके बेस पे वो हम करवाएंगे। लेकिन वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट सम फंड इनटू SIF आल्सो। यस यस, थैंक यू सर फॉर योर इनपुट्स। Yeah, thanks. I think we are going to close now. Any last questions only, and then we are closing. So Any thank questions, Shripad? Sripad Agashe, sir. No, I had question on SIF. I think you have answered in very, very great detail. So, yes. Yeah. Okay. Okay. Thank you. So bye bye. Good night and have a nice day. And don't worry about, we are any question किसी को भी पर्सनली आप कभी भी फोन करो, SMS करो, we will review the portfolio. We know that this situation is required for discussion. तो कभी भी हमारी टीम या मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि we are not available or we are busy. Anytime you can discuss, have personal meeting to with us. Thank you very much. We will share the link also, तो जो है आपको घर में किसी को और देना है तो हम थोड़ा इसको ट्रिम करके और ऑडिट करके हम लोग एक बार बनाएंगे वीडियो, एंड देन वी विल शेयर विथ यू आल्सो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। हाँ, बाय।